Okay, guys, welcome to the show of the Fan Science with me, Mohsen, and today I have two very special guests from across the border. Yes, they are from New Delhi, India, and both of them are die-hard Liverpool supporters. So we have with us Hitanshu and Varis. So how are you guys? Good, good, very good. How are you, Mohsen? I'm fine, thank you. So, guys, a brief introduction about yourself before we begin, because काफी स्पेशल शो है आज हमारे पास गेस्ट हैं अक्रॉस द बॉर्डर मैं चाहता था हमेशा कि मुझे कोई इंडिया से मिले फुटबॉल पे बात करने के लिए एंड दिस हैज हैपेंड वेरी सून तो वारिस आप अपने बारे में बताएं कब से लिवरपूल को सपोर्ट कर रहे हैं हु इज योर फेवरेट प्लेयर एंड व्हाई डू यू सपोर्ट लिवरपूल एंड सितांशु सेम क्वेश्चन फॉर यू तो वारिस विल स्टार्ट विद यू फर्स्ट Yeah, Mohsen, for me, my cousins they went to a very premier education institute here in India to do their engineering. So when they came back home from their hostels in summer vacations, they brought Liverpool along with them because like in summer of '98, Michael Owen was doing very good. So he brought poster, he brought like a couple of other things, and then like initially it was just like I got introduced to Liverpool because of my cousin, but like in early 2000 when Star Plus signed a deal with Premier League that they will be screening more games, so they came to my school back then, and then they like उन्होंने मतलब स्पोर्ट्स रूम के बाहर में उन्होंने 5-6 टीम्स के पोस्टर्स लगाए, पिक्चर्स लगाई, तो उसमें मतलब उस टाइम पे आपका एलन शेरर होता था, और फिर आपका मार्क विडूका था, और माइकल ओवन था, और आपका उस टाइम पे ये मैन यूनाइटेड के एक प्लेयर की फोटो लगी थी। तो और जो आपकी 2002 में कॉलर वाली जर्सी होती थी, रेड एंड व्हाइट का कॉम्बो जो था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब आई न्यू माइकल ओवन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट समहाउ एक कनेक्शन था मेरा उसके साथ में। तो मैंने कहा यार दिस इज माय टीम। तो जब भी मैं लंच लंच के लिए ग्राउंड में जाता था तो मैं उस पिक्चर को देखता था, एंड समहाउ दिस बॉन्ड गॉट स्ट्रक विद मी like for long time. So like for me, like I don't remember missing any game in past 16-17 years, like no matter what, no matter if I'm at my workplace or like मैं किसी ना किसी तरीके से चीजों को एडजस्ट करके अपने गेम्स तो देखता हूँ। एंड इवन लाइक my wife won't like it, but like 2 days before I was going to get married, so I was at Liverpool versus Everton screening with Delhi Cop on my healthy day. क्या so, बात है सर so That yeah. is good. You should be passionate. By the way, I'm sorry to interrupt. Star Sports India को मैं बड़ा credit दूंगा because of them. पाकिस्तान में भी broadcast start हुई थी. I think somewhere around 2002 2003. तो वही मैं उनको बड़ा credit देता हूँ. तो if anyone is from there, तो पाकिस्तान से भी सलाम है मेरा. Sitanshu, same question for you. आप अपने बारे में बताएं. How did your journey to support Liverpool begin? So, hi to everyone who is watching this and who will watch it later. So, my name is Shitanshu Sir and I write on sports and I have been following Liverpool for 10 years now. So, शुरुआत तो बहुत interesting है. So it all Hmm. started when there was a sports shop just in front of my house. So me and my brother went there to buy a T-shirt. So they gave me a Pepe Reina T-shirt. So it was a 2008 story. Okay. So they gave me a Pepe Reina T-shirt and it cost around 5 to 600. So we didn't know about what Liverpool, what Carlsberg. It was sponsored by Carlsberg. So we googled it. Then we bought FIFA 9 games. So and that the only team we knew about that time was Liverpool because we had that shirt. When we started playing from there, then we go to field. Then we heard about Liverpool, and slowly and gradually, so we get more into football and more into Liverpool. So after 2012 only, I became a proper Liverpool fan when we got a TV and sports channel. Started watching regularly, and from 2015 to 2000 till date, I have missed only 4 Liverpool games in all these years. Only four because I slept at halftime, and we all lost those games. So yeah. अच्छा, so it's okay, it's okay. So a question to both again, Varis, you first and then Sitanshu. आपके favorite players कौन है in football? Liverpool के भी and even if they're non-Liverpool players. See, like every other Indian of my 90s gen,
इंडिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी हुई फुटबॉल की वो आपकी आई 2003 या 4 में जब आपकी मूवी आई बैंडिट लाइक बैकहम, तो जिसमें Yeah. कीरा नीटले थी। और फिर ऑब्वियसली बैकहम उस टाइम पे बड़ा स्मार्ट होता था, अभी भी स्मार्ट है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि एक पॉपुलैरिटी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अगर किसी ने फुटबॉल की पॉपुलैरिटी को बढ़ाया तो वो डेविड बैकहम है। तो लाइक एनीवन एल्सेस, मैं भी बैकहम का बचपन में फैन था। और मतलब एंड आई एम नॉट एम्बैरेस्ड और ashamed to say that despite being a Liverpool fan, in my growing days I used to admire David Beckham, and sport a funky hairstyle just like him back in those days. तो उसके Nice. अलावा जो मतलब उसके अलावा जो पहला पहला मतलब जो मुझे लिवरपूल में बहुत अच्छा लगता था वो मतलब माइकल ओवन तो था ही था। उसके अलावा जो मुझे बहुत अच्छा लगता था ये आपका मतलब समी हिपिया था। कॉज मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा है वो हमेशा से। मतलब जब जब आप देखिए जब जेरार्ड हुलियर ने समी हिपिया से कैप्टनशिप लेके स्टीवन जेरार्ड को दे दी, एक नए लड़के के अंडर प्ले करना, इट टेक्स लॉयंस हार्ट टू प्ले अंडर अ गाय हु जस्ट केम इन द टीम, और उसके अंडर आपको खेलना, उसकी कैप्टनशिप में खेलना है। और मतलब इस तरीके से तो मतलब मैं जब समी हिपिया से मिला तो मैंने उसको यही बोला, तो ही वाज लाइक ऑब्वियसली ही वाज टू हम्बल्ड अबाउट इट इन 2017। तो समी हिपिया फॉर मी, लाइक आई एम अ ट्रू समी हिपिया फैन। So sorry, Sami Hipia, India आया था because a very interesting point for people in Pakistan to know that Liverpool players are even former ones are visiting India nowadays. So Sami Hipia किस चीज के लिए आया था? Was it a tournament or just a meetup? क्या था वो? समी हिपिया मतलब 2017 में दिसंबर में लिवरपूल ने मतलब हमारे यहाँ मुंबई में LFC वर्ल्ड कराया था, which was a 3-day event, and the event was graced by four former LFC legends। तो इसमें आपके रॉबी फाउलर आए थे, व्लादिमीर स्मित्सर आए थे, लुइस गार्सिया हु इज लाइक वेरी रेगुलर टू इंडिया। मतलब वो मुझे लगता है कि उसे इंडिया से बहुत प्यार है। मतलब हर इवेंट पे होते हैं, कोई भी वो ला लीगा के रिलेटेड होता है या प्रीमियर लीग का इवेंट होता है, तो आप लुइस गार्सिया को अक्सर देख सकते हैं। और उसके अलावा एक हमारा और समी हिपिया थे। तो 4 प्लेयर, रॉबी फाउलर ग्रेटेस्ट लिवरपूल प्लेयर, समी हिपिया अगेन अ वेरी फाइन सर्वेंट टू द क्लब, लुइस गार्सिया वेरी फाइन प्लेयर, एंड एक व्लादिमीर स्मित्सर ऑफ कोर्स आर इस्तांबुल हीरो। मतलब वो उस लेवल पे रेट नहीं होते हैं जिस लेवल पे आपको स्टीवन जेरार्ड को करना चाहते हैं इस्तांबुल के गेम के लिए, बट स्कोरिंग an important goal in your final game for the club, that's amazing। तो It is, and अच्छा था हैरी क्यूल इंजर्ड हो गया, वो आया था, गेम चेंज हुआ था 25th मिनट में, आई रिमेम्बर। सितांशु सेम क्वेश्चन आपने बता चुके हैं लेकिन काफी लोग अब देख रहे हैं, तो योर फेवरेट प्लेयर्स एंड व्हाई फ्रॉम लिवरपूल, नॉन लिवरपूल प्लेयर्स कोई भी हो? So I don't know about non-Liverpool players because when I started seeing Liverpool now, it was all about Liverpool. So and so my all-time favorite was Torres. It had to be Torres and Gerrard. So and when I start watching, so Gerrard was not in that much of the game. So we had to watch his videos on YouTube, long rangers screaming Gerrard. So we have to see all this. And after that, Lucas Leiva become my favorite. But my all-time favorite had to be Torres and Gerrard. Torres was, the guy was so beautiful, man. Long hair, Adidas jersey, hairband, ball, shirt. मैं भी के साथ एग्री करूंगा यहाँ पे। मतलब लाइक समी हिपिया इज लाइक माय चाइल्डहुड लव, बट एक टीनेज वाला जो लव होता है, 15-16 years when people are falling in love with girls of their age। मतलब I was falling in love with Steven Gerrard, I was falling in love with Torres, I mean, तो और that is the मतलब प्लेयर्स तो बहुत हैं। स्टीवन जेरार्ड का तो कहना ही क्या, मतलब बंदे ने अकेले लिवरपूल को कैरी किया है। जैसे क्लॉप ने इमीडिएटली लीग जीतने के बाद कहा स्काई रिपोर्टर्स को कि कांग्रेचुलेशंस टू स्टीवन जेरार्ड, on whose shoulders and knees this club has been carried on for past 20 years। तो मतलब मैंने अगर
पीछे मेंशन नहीं किया स्टीवन जेरार्ड के बारे में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं, स्टीवन जेरार्ड को स्टीवन जेरार्ड इज लिवरपूल, यू नो थियरी ऑनरी ने कहा था 2014 में लिवरपूल इक्वल्स टू स्टीवन जेरार्ड, मतलब जब उसका था कि लास्ट सीजन होगा. देयर इज नो डाउट अबाउट स्टीवन जेरार्ड. तो दिस ब्रिंग्स ऑन टू कि हमारे पास शो होगा लिवरपूल's title win. Your reaction to it, guys. So Varis and Sitanshu, any one of you can go first. Varis, go on first. See, 22 years of supporting Liverpool, 19 years full time or 18 years full time, and you know, I seriously don't know how to describe this feeling. But 2 days back, someone asked me how do you say what does this win mean to you? So I told him, like, you know, for me this win is giving me the same feeling what it would mean to me, like, you know, 16 years as a kid and snogging, like getting my first kiss of the life. So so this is so surreal, so beautiful, like, and I gonna remember this forever in my life. मतलब मेरे लिए मेरी जिंदगी के बहुत ही खूबसूरत पल है ये, जिसको मैं कभी नहीं भूलना चाहता हूँ. और मैं मतलब nothing can take, no one can take this from me, and I gonna live this forever. Ji Sitanshu, what about you? Yeah. When we win the league, now, me and Varis and my other friends, we all were on a Zoom call. And that final whistle, when the final whistle jab hua na, Chelsea versus Man City, so I was stunned for a minute, man. Kya ho raha hai? Kya ho raha hai? It's like something new, man. I clearly didn't know how to celebrate because we never had such feeling Premier League winner. I was just smiling all day. The next day, I was smiling all day whenever I think, yeah, trophy उठाएंगे, मजा आएगा, मजा आएगा. I was planning. I'm still buzzing. I'm still buzzing right now. But I'm a little bit sad for Lallana leaving. But yeah, the Liverpool victory. I'm still smiling whenever the thought hit me. Whenever thought hit my brain, we are a Premier League champion. I just smile, just keep on smiling. Yeah, imagine what would have been the scenes अगर crowd होता एंफील्ड तो रो पड़ता पूरा. मतलब ये कोविड आ गया, वरना तो तबाही मच जानी थी पूरे यूके में और दुनिया में. लोगों में तो तबाही हमारी जीत से ही मच गई है. वो इस चीज को अभी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और मतलब उनके गले से नहीं उतर पा रहा है कि यार ये लिवरपूल कैसे चैंपियन बन गई है. मतलब इवन दो वी हैव वॉन इट वेरी फेयरली. और कोई भी अगर फुटबॉल फैन है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मैन यूनाइटेड फैन है या मैन सिटी फैन है, कोई भी अगर बंदा जिसको थोड़ी बहुत भी समझ है अच्छे फुटबॉल की और वो फुटबॉल लवर है, तो वो यही कहेगा कि व्हाट लिवरपूल हैज डन ऑन फील्ड दिस सीजन इज लाइक अनमैचेबल, अनपैरेलल, एंड दे थॉरली डिजर्व विनिंग द लीग. मतलब मुझे नहीं लगता है कि जितनी शानदार तरीके से लिवरपूल ने ये लीग जीती है उतने शानदार तरीके से किसी और टीम ने जीती है. ऑफ कोर्स मैन सिटी ने 2 सीजन पहले जीती हमसे 100 पॉइंट्स के साथ में, वो कमाल की चीज है. बट 7 गेम रहते हुए लीग जीतना और रिमेनिंग टीमों से यू नो गार्ड ऑफ ऑनर लेना, मतलब मैंने तो ऐसा अपनी जिंदगी में नहीं देखा. मतलब इससे पहले मैंने एक बार मैन यूनाइटेड का देखा था जब वो शायद 4 या 5 गेम से जीते थे. तो उस तरीके से तो लिवरपूल थॉरली डिजर्व्ड इट. और अभी भी मतलब 24 घंटे तक तो यकीन नहीं होता है कि यार सही में चैंपियंस हैं कि नहीं, क्योंकि मतलब सही बात है. मतलब जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है ना, तो थोड़ा सा एक सरेलिज्म है, मतलब यकीन नहीं होता है. और फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है ना कि हम लोग घरों में बैठे हुए हैं, लोगों से वीडियो पे बात हो रही है और मतलब जूम कॉल हो रहे हैं, तो उसमें सेलिब्रेशन नहीं हो पाती. हमारे अंदर के जो 30 साल के या 20 साल के इमोशंस हैं दबे हुए, मतलब यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट आउट. मतलब मेरी फैमिली को पता है कि चलो हाँ भाई लड़का हमारा लिवरपूल सपोर्ट करता है, मेरी वाइफ को पता है कि हाँ माय हस्बैंड इज अ बिग लिवरपूल सपोर्टर ही इज, तो शी सपोर्ट्स इट. बट ऑब्वियसली शी इज इनटू फुटबॉल बिकॉज आई सी इट. बट शी प्रॉब्ली कैन नॉट कनेक्ट व्हाट दिस लीग विन मीन टू मी. मतलब यू नो लाइक समझ नहीं आता किस तरीके से करें. तो घर पे बैठे हुए हैं, एक इमोशंस का अंदर एक एक तूफान सा है कि यार कोई तो हमें मिले जिसको हम हक कर सकें, एंड ही हक्स अस बैक विद द सेम फीलिंग. I can understand. We did it. और जबरदस्त. जी सितांशु. Or any club who wins a league
deserves it because it's a long league, 38 games, and you need to be consistent throughout. And Liverpool have been consistent for 2 years now. That's something brilliant, man. Last season we lost just one game, and till Watford it was just the same for almost year and 2 months. So we didn't lose a game. That is something people had to acknowledge. But yeah, the fume is real amongst the rivals fan. And coming to the celebrations now, coming to celebrations, and we need people to celebrate now. We can just smile and there was a आग का ज्वाला अंदर है but वो निकल नहीं रहा. We need someone to hug, someone to chant with, someone to sing with, to show how happy we are. To let us. Football लेकिन is all about people. Celebration is all about people. लेकिन जैसे हमारे क्लॉप ने कहा है, हमारे मैनेजर साहब ने कहा है कि when the time is right, we will tell you the place, we will tell you, get ready for the party, and we will show the world how is party done. So we are going to be double unbearable once the COVID bullshit gets over. Trust me. अच्छा, sorry, net का थोड़ा problem हो गया. So let's talk about the. You guys can hear me, right? Yeah. Yeah. I can अच्छा, hear so you loud and clear. let's talk about the man who's made it possible. I mean, Jurgen Klopp. जितनी तारीफ करे उतनी कम है. मुझे बताएं वारिस, आप भी देख रहे हैं 15-20 साल से, आप भी 10 साल से ऑलमोस्ट देख रहे हैं सितांशु. इससे पहले बहुत मैनेजर आए थे. आई बिलीव डगलीश के बाद सूनेज आया, हैंसन आया, हुलियर, बेनिटेज, डगलीश फिर वापस आया और द ग्रेट रॉय हॉडसन लेकर आया था. आई वाज रियली अनॉयड एंड पिस्ड जब वो आए थे, लेकिन खैर so many came. Brendan Rodgers came. I thought some of them came very close. Rafa Benitez was someone जो लग रहा था शायद कुछ कर ले, लेकिन क्लॉप ने में ऐसी क्या चीज थी जो उसने किया और बाकी लोग नहीं कर सके. मतलब ये मुझे अभी तक नहीं समझ आ रही. आप लोग प्लीज समझाने की कोशिश करें मुझे और जो भी व्यूअर्स हैं कि व्हाट हैज क्लॉप डन डिफरेंटली, टैक्टिक्स वगैरह या क्या चीज. Should I go with it first, Sitanshu? anyone can go first. Anyone, go ahead. फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक मेजर रोल प्ले करती है क्लॉप की पर्सनालिटी को, वो है उसका जर्मन कैरेक्टर, दैट इज स्टबर्ननेस. और वो हमने मामादू साको के केस में देखी, वो हमने और डिसिप्लिन के केसेस में देखी. ओके, और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज जो हम मतलब आपने जैसे जैसे जिन मैनेजर्स का नाम लिया और क्लॉप का नाम लिया, ऑल द मैनेजर्स दैट यू हैव मेंशन्ड, दे आर ग्रेट, दे बीन द बेस्ट, दे हैव डन everything for Liverpool, what Klopp has done. तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो बड़े स्पेशल थे. मतलब क्लॉप बहुत स्पेशल है, क्लॉप 100% दे रहा है, उन्होंने 90% दिया, ऐसा नहीं है. कोई भी जब अपनी जॉब करने जाता है तो वो 100% ही देना चाहता है, स्पेशली when the happiness of millions of people depend on you. Okay, तो जो सबसे एक चीज जो क्लॉप को और दूसरे मैनेजर से असाइड करती है वो है उसका कि जो प्लेयर उसको चाहिए वो ही प्लेयर चाहिए. वो इसलिए साइन नहीं करता है कि अरे ठीक है मुझे, जैसे हमने वेन डाइक के केस में देखा 2017 में कि यार वेन डाइक को साउथहैम्पटन ने हमें नहीं बेचा या हम किसी रीजन की वजह से नहीं खरीद पाए. तो ऐसा नहीं हुआ कि क्लॉप ने कहा ओके ठीक है यार, लेट मी बाय अ मेकशिफ्ट प्लेयर फॉर टू कवर अप फॉर द वेन डाइक. जैसे पीछे 2014 में रॉजर्स के एरा में होता था, रॉजर्स को चाहिए कोई कमिटी उसको कोई दे रही है, ठीक है, हम वी वांट, मतलब हमें चाहिए, बैलोटेली रहा है, साइनिंग हम किसी के लिए कर रहे हैं या हमें साइनिंग हमें डिएगो कोस्टा करनी है, हम ला रहे हैं डाउनिंग को ला रहे हैं या कैरोल को ला रहे हैं इंस्टेड ऑफ कुन एग्वेरो. तो ब्रेंडन रॉजर्स और क्लॉप में तो यही चीज है कि ब्रेंडन रॉजर्स तो मेरे को लगता है कि जैसे वो कमेटी के आके थोड़ा सा गिव अप कर देता था, बट क्लॉप इज लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड. उसको पता है कि मेरे को क्या चाहिए और मेरे को यही बंदा चाहिए मेरी टीम में जो मेरे सिस्टम में फिट होगा. तो ही नोज व्हाट ही वांट्स, उसको अपने टाइप का ही प्लेयर चाहिए और जो चाहिए वही चाहिए. उससे कैसे आएगा वो उसको पता है और उसकी टीम को पता है, और कैसे अपने ओनर्स को मनाना है या कैसे फाइनेंसेस अरेंज करने हैं. तो दैट इज वन एरिया वेयर क्लॉप गोज वेरी वेल. बट या जैसे हमने मतलब राफा बेनिटेजे का टाइम देखा, आई मीन लाइक राफा बेनिटेजे वांटेड टू साइन गैरेथ बैरी, राइट. तो गैरेथ बैरी को लाने के लिए हमें यार चाबी अलोंसो को बेचना पड़ रहा. मतलब चाबी अलोंसो को बेच के कौन गैरेथ बैरी लाता है यार. मतलब सही बात है.
तो अब उस टाइम पे हमारे पास ऐसे फंड्स भी नहीं होते थे कि यार चलो हमारे पास बैकिंग है बढ़िया, एफएसजी ने सब कुछ बढ़िया से इन्वेस्ट किया, तो यार मतलब क्लॉप के साथ टीम तो उसकी बढ़िया है ही है, साथ में जो हमारे ओनर्स हैं वो भी सपोर्टिव है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि एफएसजी पैसा नहीं खर्च करता है, एफएसजी पैसा यार दे आर इन्वेस्टमेंट ग्रुप और दे नो व्हाट दे आर डूइंग। तो क्लॉप प्लस एफएसजी इज इक्वल टू मैच मेड इन हेवन फॉर मी। हेवन। अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यार हमने प्लेयर्स 450 मिलियन के बेचे हैं और खरीदे हमने 530 के हैं, तो नेट स्पेंड एफएसजी का 80 मिलियन है। मतलब फॉर मी हमारी टीम में वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ क्लॉप। और आज भी अगर कोई भी मतलब जिसे अंडरस्टैंडिंग है फुटबॉल की, वो कहेगा ठीक है भाई साहब आप अपने 11 प्लेयर्स की लिस्ट दे दो, ठीक है, जो प्लेयर ऑफ द ईयर की लिस्ट दे दो, तो उसमें आपका वो एलिसन बैकर डालेगा ही डालेगा, ठीक है। और फुल बैक्स पे तो वो एक दूसरे से पूछेगा भी नहीं, क्योंकि उनको लगेगा कि यार हम तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो चलो भाई ये स्लॉट तो अलेक्जेंडर आर्नोल्ड का है और ये हमारा हो गया रॉबर्टसन का, बीच में वैन डाइक है। तो 4 प्लेयर तो आपके डिफेंसिव में ही हो गए। जो 2017 में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो डिफेंस की प्रॉब्लम थी। आगे का इंजन हमारा फरारी का था, पीछे का इंजन हमारा मतलब 1960 की गाड़ियों का था। और आज हमारा पीछे का जो पार्ट है वो सबसे बेस्ट पार्ट है, गेटिंग इट। और फरारी का इंजन पीछे, बिल्कुल। तो हाँ, फरारी का इंजन है, फरारी का हाँ बूट स्पेस है। और कंफर्ट बिल्कुल। भी आप देख लेना, रोल्स रॉयस वाला है। आप देख लेना वैन डाइक के आने से इट्स मेड हेल ऑफ अ डिफरेंस। आई मीन जो डिफेंस उठा है एलिसन और वैन डाइक के आने से, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और आपने क्वालिटी की बात की थी, मुझे याद है ये कैरिगर ने बोला था मंडे नाइट फुटबॉल पे स्काई स्पोर्ट्स नेवल के शो में कि हमारी ट्रांसफर भी उस वक्त सही नहीं थे, कि हमें जब कैंटोना बहुत पहले 90s में चाहिए था वो नहीं आ पाया, यूनाइटेड ले गया हमें। फिर मुझे एक प्लेयर नाम याद नहीं आ रहे, वो चाहिए थे वो नहीं आप ये देखिए 80s में आए। वी वांटेड टू ब्रिंग माइकल लॉड्रप नहीं आ पाया। 90s में हमें कैंटना चाहिए था, कैंटना हमारे पास नहीं आया। राफा बेनिटेज ऑलमोस्ट साइन क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन 2002 और 2003 बिफोर ही वेंट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। और फिर अभी अगर हमें देखें, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने मिस्टेक कर दी है, शायद 3-4 साल पहले डेले अली को हम ला रहे थे एंड वी जस्ट मिस्ड हिम। लाइक हाउ मच 500,000 पाउंड ऑन ट्रांसफर टेबल मींस नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। अब राइट। तो अब जैसे जैसे मैं डेली अली को देख रहा हूँ, मतलब ये सीजन वो नहीं चला, लेकिन पिछले जब उसने टॉटनहैम के लिए साइन किया था, यार क्या खेल रहा था वो। ही वाज स्कोरिंग जस्ट लाइक गेरार्ड। बिल्कुल बिल्कुल। सितांशु, योर व्यूज ऑन दिस, मतलब कि आप क्या समझते हैं, मतलब समथिंग एल्स। जो वारिस ने तो एक बात बोली है, मैं अपना भी ऐड करूंगा। क्लॉप की एक पर्सनालिटी अलग है, इजी गोइंग विद द मीडिया, नॉट योर टिपिकल मैनेजर जो सूट्स पहन के आएगा। और एक बड़ी फनी प्रेसर्स भी उसके बड़े एंटरटेनिंग होते हैं। एंड वो कभी कभी अपनी लैंग्वेज को भी लूज छोड़ देता है, जैसे अभी उसने बीएस कोरोना वायरस और ये चीजें बोली। तो आप क्या बोलते हैं? वेरी एंटरटेनिंग पर्सन। आई मीन इवन आई हैव अ फ्रेंड हु इज अ सिटी फैन हियर, वो ही लव्स क्लॉप। तो आप क्या ऐड करेंगे फ्रॉम व्हाट वारिस हैज सेड कि व्हाई इज क्लॉप सो सक्सेसफुल? मैं शुरू से बोलना चाहूंगा कि जितने भी हमारे वो मैनेजर्स थे, जेरार्ड हुलियर से लेके राफा बेनिटेज, वो सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी थी। जेरार्ड हुलियर उन्होंने बहुत कुछ जीता था, एफए कप, लीग कप, सब कुछ जीता। बट लीग नहीं जीत पाया, प्रीमियर लीग नहीं जीत पाया। उसके बाद वी वॉन चैंपियंस लीग विथ राफा बेनिटेज। और केनी आया, किंग्स सर केनी आया। उसके बाद सर केनी विन लीग कप, जो हमारा आई गेस before Champions League victory से पहले, that was the last cup we won, and the gap was huge, man. I think 6 or 7 years. It's a huge gap. But what Klopp brings, he brings mentality, और एक होता है ना easy going nature, कि हर कोई उसको अपने साथ रखना पसंद करता हो, और बहुत इन्फ्लुएंस होता है उनके कैरेक्टर का बाकी लोगों पे। तो ये जेरार्ड मेंटालिटी लाता है। फिर होता है ना कि जेरार्ड के साथ, सॉरी, क्लॉप के साथ, क्लॉप एंड माइकल एडवर्ड्स को मैं ऐड करना चाहूंगा। माइकल एडवर्ड्स, द रोल ही प्लेड इन बिल्डिंग लिवरपूल इज ह्यूज, मैन। लोग क्रेडिट देते हैं, बट व्हाट ए गाय, मैन। और कितने प्लेयर्स को कितने महंगों में बेचता है वो। तो Michael Edwards brought players what
Klopp wanted, and Klopp made player better. जब बिल्कुल फर्मिनो, साला एंड माने जब भी आए तो दे वर नॉट वर्ल्ड क्लास प्लेयर, और एटलीस्ट लोग उसे एक्नॉलेज नहीं करते कि दे वर वर्ल्ड क्लास प्लेयर, बट क्लॉप मेड देम वर्ल्ड क्लास प्लेयर. आई थिंक Alisson or Van Dijk were the only world class player we bought in. Even Coutinho we bought for 8 million, but how Coutinho developed in those बिल्कुल 2.5 years, man. So now right now I guess we can name 10 or 11 players in that Liverpool squad that are world class. और ऊपर से जो यर्गन क्लॉप होता है ना, मतलब क्या बोला, चिल्ड आदमी एकदम, मतलब बिल्कुल यार जैसे like Varis said, he's a German stubborn. मोहम्मद शको केस में था, he didn't came, he used to came late on training और कुछ आर्गू हुआ, so look where he is now. So Klopp किस प्लेयर जो उसको पसंद हो, क्लॉप वांट्स प्लेयर जो उसकी सिस्टम में फिट हो. इसलिए वी डोंट साइन एनीवन. वी like last two transfer windows, last three transfer, we haven't signed anyone. We got Adrian for free, we got Harvey Elliott, so they are very young players, and Adrian for free of course. So yeah, Klopp will find, or Michael Edwards will find those जो Klopp को पसंद है. So yeah, बिल्कुल over ऐसे to तो you. जी वारिस, यू वर सेइंग समथिंग. नहीं, मैं जैसे एक चीज मेंशन कर रहा था, मतलब मैं बड़ा फिलोसफिकल आदमी नहीं हूँ अपनी जिंदगी में, और ना ही मेरा कोई स्पिरिचुअल गुरु है, या उस तरीके से जैसे होते हैं ना लोग थोड़ा मोटिवेट होने के लिए पढ़ते रहते हैं इधर उधर के, किसी पीर को पकड़ लेते हैं, किसी बाबा को पकड़ लेते हैं. तो मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं किया है. मैं बड़ा इजी गोइंग हूँ. सितांशु मतलब मैं सितांशु को हर हफ्ते मिलता हूँ गेम स्क्रीनिंग्स पे. अभी 4 महीने से नहीं मिल पाया हूँ. बट यार आप जैसे एक चीज देखते हो ना यार, योर्गन क्लॉप की जो सबसे अच्छी बात है ना, उसने जो एक बात कही थी कि यार when we go on the field, when we are on the field, when we are on training field, when we are at Anfield or when we are at away games, हम 100% देते हैं अपनी लाइफ का to win the game for you people. कहते, और it's not just only we want to give 100% on field, we give 100% on in our life also, because this is how life is. Whatever you are doing, you need to do it with 100%. मतलब that thing hit me very hard. मतलब वो तो है ही है यार, आपको मतलब 100% देना है जो भी आप कर रहे हो, और वो कितनी शानदार बात है. उसके अलावा फिर जैसे योर्गन क्लॉप ने अभी पीछे बड़ी अच्छी बात कही, जब हम किससे हारे थे, सिटी से हारे, हम सिटी से हारे जो ये पीछे हारे, तो वो सिटी से हारने के बाद में अगले दिन योर्गन क्लॉप इज एट मेलवुड पे उसने कहा कि यार मैं कल जब गेम हारा तो मैं बड़ा निराश था, लेकिन आज जब मैं ट्रेनिंग ग्राउंड पे आया तो मैं बड़ा खुश हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं अपनी जिंदगी में अगर कोई चीज बेहतर कर सकता हूँ तो मैं उस चीज को यहाँ पे बेहतर कर सकता हूँ. एंड दिस इज वेयर वी मेक द थिंग्स राइट, यू नो, लाइक वो चीज बड़ी शानदार है. और मेरा मतलब एक मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है जो अपनी जिंदगी में थोड़े से डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा है. ही इज जर्मन, बट उसको फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं है. तो मैंने कहा यार तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो, तुम्हारा एक अपना खुद बंदा है जर्मन का, उसको सुनो, उसकी बातों को पढ़ो, तो तुम्हें जिंदगी में शायद और मोटिवेशन आ जाएगी हाउ टू डू थिंग्स बेटर इन लाइफ. बिल्कुल. तो वेरी continue. And Jurgen Klopp is like a spiritual guru now. He is a Sadguru now. Guru Klopp. Guru Jurgen. वारिस, आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही है अभी, मोटिवेशन की बात. दिस brings me to this thing, प्लेयर ऑफ द सीजन. आपके पर्सनल व्यू से पूछना, बट यस्टरडे FWA राइटर्स एसोसिएशन का प्लेयर था जॉर्डन हेंडरसन. इसकी अगर हम बात करें, आई विल ओपनली एडमिट, आई यूज्ड टू से एक साल इस सीजन के स्टार्ट में दोस्त को कि यार एक अच्छा मिडफील्डर आ गया ना, हेंडरसन आपका बेंच पे गया, भैया वो कैप्टन इस टीम में खेलता है. आई वोंट लाई, आई रेज माय हैंड, मैंने कहा था. बट द गाय हैज इम्प्रूव्ड, एंड आई बिलीव मोटिवेशन की बात है. अगर आप किसी को देख लेना, हेंडरसन एक मिसाल है जिसको फर्गुसन ने कहा था कि ये बंदा भाग नहीं सकता सही तरह, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, कि ही रन्स ऑन हिज लेग्स नॉट फ्रॉम हिज बैक. तो इसके प्रॉब्लम्स होंगे, और इसका रोल समझ भी नहीं आया था. राइट विंग पे खेलता था, सनडरलैंड से आया, रॉजर्स ने थोड़ा सेंट्रल किया, मतलब साइड वे पासर्स और बहुत बातें की इन्होंने. बट इस सीजन वी हैव सीन मतलब हिज इंपॉर्टेंस, हिज लीडरशिप. व्हेनेवर ही इज मिस्ड अ मैच, लिवरपूल आई थिंक इसके बगैर तो सारे मैचेस हारे जितना, इफ आई एम करेक्ट, सिवाय उस सिटी मैच के.
तो हेंडरसन के बारे में बताएं, और प्लेयर ऑफ द सीजन आपकी नजर में कौन है लिवरपूल का? तो सितांशु, विल स्टार्ट विद यू फर्स्ट दिस टाइम. So Henderson is someone Statman won't show you. Statman will show you assists, goals, but Henderson is all about attitude, inspiration, a leader among leaders. I would call it. And Henderson, he runs. People say he just runs, but Henderson is someone. He जब भी मैं बताता हूँ, जब गेम को नोटिस करता हूँ, टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में देखता हूँ, हेंडरसन किल काउंटर अटैक्स ऑफ अपोनेंट टीम. वी लॉस्ट दिस सीजन, वी लॉस्ट ऑल मैचेस. जितने मैचेस हम लोग हारे ना, उसमें हेंडरसन था नहीं. वाटफोर्ड गेम, सिटी गेम, आर्सेनल गेम, हेंडरसन नहीं खेल रहा था. बट और ये कि ये हेंडरसन और इतना इम्प्रूव हुआ है बंदा. आई थिंक हेंडरसन वाज ऑलवेज बीन गुड, बट टॉप में बेटर कह सकते हैं. ही बहुत अच्छा हो गया वो. और जो क्लॉप, जो मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना, जो क्लॉप जो ड्रेसिंग रूम में बताता है, हेंडरसन इज लाइक अ क्लॉप ऑन फील्ड. He arranged midfield. He tells people where to press, where not to press. He arranged positions like Van Dijk. Van Dijk arranged defense lines. He tells fullback where to go, where to run. But Henderson क्या, हेंडरसन क्या गेम को कंट्रोल करता है. And जब भी हेंडरसन ग्राउंड में था ना, we were like lost in the game, like we did against Watford, we did against City. And we lost 4-0 to City, and 3 goals were on a counter attack. I believe if Henderson would have been there, at least दो गोल तो आराम से हो जाते हैं at least. And Henderson क्या बोलूं मैं, Henderson is like, I told you, Henderson is like a Klopp on his field. He implements what Klopp says in the dressing room. And Henderson, Waris, over to you. वेरी वेल सेड सितांशु. मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैंने जॉर्डन हेंडरसन को पहले दिन से फॉलो किया है. ऑब्वियसली वो जब वो सनडरलैंड से आया तो ही वाज प्लेइंग ओवर देयर एज अ सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर. बट व्हेन यू आर कमिंग इन लिवरपूल, यू हैव ऑलरेडी अ प्लेयर ऑफ जेरार्ड्स कैलिबर. तो ऑब्वियसली जेरार्ड आपको अपनी जगह नहीं देगा. जेरार्ड क्या मैनेजर ही आपको जेरार्ड की जगह नहीं देगा. तो व्हेन हेंडो यूज्ड टू स्ट्रगल अ लॉट. So I remember I was watching the Carling Cup final with a friend of mine, Sayam Bajaj, here in Delhi. और बहुत ही सर्द भरी रात थी यार. मतलब कड़ाके की सर्दी यार, बहुत ही कड़ाके की सर्दी. और जब बॉल कार्लिंग कप फाइनल में, मतलब आपको शायद याद होगा, डाउनिंग वाज आवर मैन ऑफ द मैच इन दैट गेम. याद है. तो जॉर्डन हेंडरसन के पास जब भी बॉल आती ना, या जॉर्डन हेंडरसन क्या करता, मेरा दोस्त कहता, देख अब ये बॉल पीछे पास करेगा, ठीक है. तो that was the first time we came up with the word Jordan backpass Henderson in 2012. ठीक है. तो मैं शायद को रात में मेंशन भी कर रहा था यही चीज. तो लेकिन जब हम गेम जीत के हम बाहर आए, हमने कहा यार देख, प्लेयर कैसा भी हो, बट that guy is destined for greatness. आज नहीं तो कल नहीं तो कुछ सालों के बाद इस बंदे का नाम ऐसा होगा कि मतलब इसके जैसा कोई नहीं होगा हिस्ट्री में हमारी. So, look at now, and look at now. The guy has guided us to win 4 major trophies in international football or at club level football. तो और आज ही कोई ना फेसबुक पे कह रहा था कि यार मतलब जैसा सितांशु ने भी कहा ना कि अगर if you look at the records, he is no match to your Kevin De Bruyne. By far, Kevin De Bruyne is the star player, best player in the Premier League. But Kevin De Bruyne cannot do what जॉर्डन हेंडरसन कैन डू. तो और किसी ने कहा कि यार जैसे पेप गार्डियोला ने भी यही कहा कि यार वो तो कुछ भी हो, लिवरपूल का प्लेयर है तो लिवरपूल के प्लेयर को तो प्लेयर ऑफ द ईयर मिल ही जाएगा. हेंडरसन का क्या रोल रहता है ना यार. हेंडरसन के बिना जितने भी हमने गेम खेले सब हारे. मतलब लैक लस्टर रहे, कोई कमांड नहीं है बीच में, मतलब कोई गाइडेंस नहीं है जैसे स्टीवन जेरार्ड करता था या हेंडरसन ने पिछले 3-4 सालों में किया. हेंडरसन ने, अगर आपने 2017 में मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट कितनी बढ़िया कैप्टनशिप की थी. मतलब भाई शेर की तरीके से पूरे फील्ड पे सुनाई दे रहा था वो. और फिर उसके अगले गेम में वो एएस रोमा के अगेंस्ट भी उतना ही वोकल था. तो वो उसकी लीडरशिप क्वालिटी तो है ही है. और कहीं ना कहीं उसको मतलब एक एडवांटेज, मतलब ब्रिटिश होने की मिलती है, इंग्लिश होने की मिलती है टीम में, कि हाँ भाई वो तो रह गई कि यार मैं यहाँ का हूँ,
एंड ऑब्वियसली एवरीवन एल्स इज प्लेइंग इन दिस कंट्री, तो वो थोड़ा और कमांडिंग होता है, ही नोज द सिस्टम, ही नोज हाउ थिंग्स गोज। तो उसके अलावा फिर यार आप ये देखो, जो FWA प्लेयर अवार्ड है वो आपको स्टैट्स की वजह से नहीं मिलता है, वो आपको मिलता है कि आपका ओवरऑल आपने कैसा ऑन फील्ड मोटिवेट किया, आपने कैसे ऑफ फील्ड मोटिवेट किया। ऑन फील्ड की हमने बात की कैसे इसने टीम को किया, बट इफ यू सी, जब सबसे पहले हमारा ये कोविड 19 का ब्रेकडाउन हुआ, जॉर्डन हेंडरसन वाज द फर्स्ट प्लेयर टू फॉर्म अ कमिटी ऑफ द प्लेयर्स ऑफ द, जितने भी कैप्टन होते हैं शायद उनकी कमेटी बनाई, और उसने ही स्टार्टेड विद NHS आई गेस, मतलब कि कैसे हम उनको हेल्प कर सकते हैं एंड रेज मोर अवेयरनेस। तो यार उसने आपका ऑन फील्ड भी कंट्रीब्यूशन कर दिया, उसने ऑफ फील्ड भी आपको मोटिवेट कर दिया, और ऑब्वियसली स्टैट्स तो अलग ही चीज होती है। कितने बढ़िया प्लेयर्स होते हैं जिनके नाम पे रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं, बट उनका गेम का क्या कंट्रीब्यूशन होता है वो सबको पता होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। सेम, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, जैसे स्कोल्स, जावी, इनिएस्टा आप देख लें, स्टैट्स मतलब उनके बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं होंगे। आई मीन जेरार्ड लैम्पार्ड के स्टैट्स आर वे अहेड मिडफील्ड की बात करें, बट आई एम नॉट सेइंग कोई किसी से कम है या ज्यादा है, बट वेरी गुड पॉइंट। सितांशु प्लीज, आप कुछ कह रहे थे। मैं बहुत बिफोर COVID-19 situation also, Henderson used to throw party for cancer students, used to work for food banks, and in this COVID-19 he collected around 2 million pounds. That's a huge number, and I think there was a report saying that he also paid the lunch bill for those NHS employees, those healthcare employees. So, and as Varis said, the player of the award, it's the player of the award. So the journalist will look on the field and off the field also, and it's not the best player. Of course, Kevin De Bruyne has been the best player for I guess 2 to 3 years now, and no one can fill boots of Kevin De Bruyne. But Henderson he's just sensational man. On the field, off the field, in the dressing room, he carries. Yeah. So yeah. He carries. मेरे एक दो दोस्त हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ इंडिया से, वो लोग हेंडरसन से कई बार, मतलब लिवरपूल सिटी सेंटर में या जो भी उनका वहां पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या सिटी सेंटर है, तो वो उससे कई बार हेंडरसन से मिले, और उन्होंने मेरे से कहा कि यार वो कभी भी अगर वो मिला और उसके आजू बाजू 10 लोग भी हैं और वो उनके पास, उन्होंने जाके उससे फोटो के लिए कहा या किसी भी चीज के लिए कहा। और यूजुअली जैसे इंग्लिश प्लेयर्स जो होते हैं ना, थोड़ा सा रूड होता है। मतलब रूड क्या होता है यार, आपको कोई कॉन्स्टेंटली बस करता रहे, आप अपनी फैमिली के साथ हो और आपको डिस्टर्ब करता रहे, तो हाँ तंग हो जाते हो। तो उसमें मतलब फेयर प्ले टू द प्लेयर्स यार, इट्स बाउंड टू हैपन। बट किसी ने भी मेरे को आज तक ये नहीं कहा कि यार हेंडरसन ने नखरा दिखाया, या हेंडरसन ने कहा कि नहीं थोड़ी देर बाद आ जाओ। ही वेरी हैप्पीली पोस्ट विद देम। तो मतलब apart from being a great captain on field and off field, in his real life also he is winning, or if you and they play for us fans. Without football, without fans is nothing, and Henderson knows this very well. So क्विक क्वेश्चन, आप लोगों का कौन है प्लेयर ऑफ द सीजन लिवरपूल का? जरूरी नहीं है कि हेंडरसन हो, वो FWA की अपनी एक वर्डिक्ट थी, हर किसी का अपना होता है। काफी लिवरपूल फैंस, आपको बताओ, आपस में भी डिवाइडेड हैं। माने होना चाहिए, वैन डाइक होना चाहिए, एलिसन होना चाहिए, हेंडरसन होना चाहिए। आपकी कौन सी पिक है कि दिस प्लेयर वाज द रीजन, मतलब ये सीजन सक्सेस था? For me, I guess Mane has been the best player for this season for Liverpool. But if I had to give the player of the season, I would give it to Henderson, because what he does on the field, off the field, and his all other work. So Mane has been great. Mane is humble too. Mane is modest too. Mane is living a dream season, but I would give it to Henderson, because what he has suffered in the past, and how underrated he has been, and now he's getting all the recognition and acknowledgement. So yeah, Henderson for me. Definitely. And Varis, आप? या मतलब मेरे लिए भी मतलब प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो जॉर्डन हेंडरसन है। मतलब टू बी ऑनेस्ट उसमें कोई उसके आसपास नहीं है। ऑब्वियसली वैन डाइक
हैज बीन फेनोमिनल, बट हम यहाँ प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, सुपर ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम वैन डाइक को साइड पर रखेंगे। और और, वैन और डाइक बड़ा टावरिंग पर्सनालिटी। आपको पता है, मैं उस मैच की बात करूंगा विच वी वन, थोड़े एक दो चांसेस थे, हम गोल खा सकते थे, लेकिन वो जो एनफील्ड पे हम यूनाइटेड मैच जीते थे ना 2-0, उसमें वैन डाइक का एक मैंने चीज देखी, जो भी डैन जेम्स और वो सॉरी लेफ्ट से क्रॉसेस आ रहे, वैन डाइक एक टावर बनाता हेड पे हेड करे जा रहा है। आप बॉल फेंको मैं इसको क्लियर कर दूंगा। उस दिन मैंने एक दोस्त को, यूनाइटेड दोस्त को बोला, भाई डिफेंडिंग छोड़ो, वो बंदा बॉल बॉक्स में लैंड भी नहीं होने दे रहा। ऑब्वियसली वो ह्यूमन एज वेल, एक दो तो चांस मिले थे इनको। तो मूविंग ऑन टू अनदर टॉपिक, वेरी कंट्रोवर्शियल, काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल, बट ट्रांसफर मार्केट, एफएसजी कह रहा है नहीं होगी स्पेंडिंग, क्लॉप को टियागो चाहिए, काफी प्लेयर्स जा रहे हैं। लॉवरिन 11 मिलियन में सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा है, शकीरी शायद जाए, ललाना इज आई थिंक ऑन वे टू लेस्टर। दो तीन प्लेयर्स का इधर उधर है, तो क्या लगता है क्या होगा, रियलिस्टिक क्या टारगेट्स हैं आपके लिए, या आपकी क्या कहना है इस बारे में? यार ये तो मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि क्या ही बोलें। एफएसजी को मैं पिछले 10 साल से जानता हूँ, और मतलब उन्होंने हमेशा अच्छा पैसा स्पेंड किया। बीट कमिंग इन द फर्स्ट ईयर दे ब्रॉट एंडी कैरल, चाहे भले वो टॉरस के पैसे से आया हो, सोरेस को लेके आए। फिर 2013 बहुत ही मैसौल था, मतलब हम लोग यार एली सिसोको, अल्बर्टे, वो क्या था यार वो, मैनकी, मोरिनो मैनकिलो, जो एलन। हाँ, जो एलन तो अच्छा प्लेयर था, वो अच्छा राइज कर रहा था। तो वो फिर भी वो क्वालिटी नहीं थी ना जो मतलब हमें चाहिए थी। मैं एक बात कैरिकेट रिपोर्ट करना भूल गया था। उसने कहा था 2001 में जब 14 मिलियन का आर्सेनल ऑनरी खरीद रहा है, तो हम 11 मिलियन में हेस्की ले रहे हैं। हेस्की इतना बुरा नहीं था जितना हमने बोला हुआ है, लेकिन मतलब एक क्वालिटी का फर्क आ रहा था कि हम लोग प्लेयर अच्छे लाते थे पोटेंशियल बेस्ड, बट अदर टीम्स दे वर गेटिंग प्लेयर्स हु वर मतलब क्या बोलते हैं गुड, ये करते हैं क्या बोलते हैं विद एक्सेप्शनल क्वालिटीज। ये एक मेरा दोस्त है, ऑस्ट्रेलियन बेस्ड है, पाकिस्तानी है। इनका क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि ये इनका आप जवाब आपको शो हो रहा है स्क्रीन पे? हाँ बिल्कुल। तो इनको प्लीज जवाब दे दें आप। इनका ये क्वेश्चन है कि बेन वाइट एक टारगेट है जो आई थिंक लीड्स पे लोन पे था फ्रॉम ब्राइटन। Is he the one Liverpool should sign with Lovren going, and Lallana की जगह कौन ला सकते हैं हम लोग? मतलब ऑनेस्टली मैं बहुत ही ज्यादा ट्रांसफर टॉक्स को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मैं लाइक too lost, too buzzing up with whatever is happening in my life cause of Liverpool winning the league, then lifting the trophy. तो मेरे को सही में बेन वाइट का कोई आइडिया नहीं है, बट अच्छा, बट जैसे सितांशु आपको आइडिया है इसका? सॉरी वारिस, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपको आइडिया है, आप क्या समझते हैं? Yeah, when White is a center half, na, he just leads Loney to, I think, to Brighton. So I haven't seen Ben White, much of Ben White, but in that Amazon Prime video. So yeah, Ben White by there, I guess, but to someone to replace Lovren, I think not Lovren, to Joe Gomez and Matisse. So I guess it would be no for me to Ben White. Because इतना देखा नहीं है, सुना नहीं, और ही इज स्टिल यंग प्लेयर। सो सही। और अभी हमने क्लॉप से भी नहीं सुना, क्लॉप का भी नहीं सुना। सॉरी मैं जी कंटिन्यू, बोले। आई वुड लाइक टू ऐड Ben Chilwell, I would prefer Ben Chilwell for a backup, and for my transfer target would be a proper striker, at least a winger to put some pressure on Mo Salah. But lots of respect to Mo Salah, but I think he missed too much easy chances, like we saw in the last game. So he missed 3 easy chances, and he had been scoring goals, but he could score more goals. If he had not missed those simple chances. So I think we need to buy a winger from right hand side, at least to put some pressure on Mo Salah, and we have some good youngster now. We have some good youngsters, Curtis Jones, Harvey Elliott. They are very good players. Even Brewster. I have seen Brewster live in Salt Lake Stadium in 2017. The guy is phenomenal. Because क्या position है उसका, मतलब the movement and off the ball movement, he's really good. So yeah, if I had to, I would get a left back and a winger. बाकी young player है हमारे पास, अच्छे हैं.
we missed out on quite, मतलब साका एक अच्छा, बहुत अच्छा एक नजर आ रहा था पोटेंशियल, वो आर्सेनल एक्सटेंड कर दी, वर्नर नहीं आया, थियागो का चल रहा है, और अडामा का भी, अडामा ट्रायोरे का रूमर आता है वुल्स वाला, के वो एक क्लॉप को बड़ा पसंद है, बट उसकी वैल्यूएशन बहुत हाई रखी है वुल्स ने। तो वारिस थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन सितांशु समझ रहे हैं कि मो सलाह थोड़ा शायद सेल्फिश हो जाता है, मिस कर लेता है, ये चलती रहती बातें विद इन लिवरपूल फैंस भी, कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। व्हेन ही इज गुड, मतलब कभी कभी उसका दिन नहीं होता तो होता है, लेकिन आप क्या कहेंगे इस बारे में? या सलाह तो देखो, मतलब वन सीजन वंडर होने के बाद में भी वो हर सीजन में कम से कम 20 प्लस गोल स्कोरर है। तो बिल्कुल मतलब आई थिंक आई हैव submitted, like I have given you my response, what I want to say about it. और समझ गया मैं। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग होता है व्हेन यू सी सलाह मिसिंग सिटर्स, और वो मतलब बहुत ही आसान सिटर्स होते हैं। ऑब्वियसली एज अ फैन तो हम कुछ भी बोल सकते हैं कि यार उसको ऐसा करना चाहिए था, उसको वैसा करना चाहिए था, लेकिन ऑब्वियसली उनको दे आर बीइंग पेड लाइक 200,000 पाउंड अ वीक, एंड दे ऑब्वियसली नो व्हाट दे गॉट टू डू। तो ये है, लेकिन हाँ मतलब वो जब बहुत ही माइनर से सिटर्स मिस करता है, मतलब वो खुद सलाह भी बड़ा फ्रस्ट्रेटेड दिखता है जब वो ऐसे सिटर्स मिस करता है, और फैंस तो ऑब्वियसली होते ही है। लेकिन सबसे कमाल की बात ये है कि वो सब इतने सिटर्स मिस होने के बाद में भी वो 20 प्लस गोल्स हर सीजन में स्कोर कर रहा है। और जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है वो उसकी अपनी परफॉर्मेंस थी फर्स्ट सीजन की, जिसमें उसने 47 गोल्स स्कोर किए। तो लोगों की बिल्कुल एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई है, और वही ना कि प्रीमियर लीग में आप खेल रहे हो, प्रीमियर लीग का लेवल इतना हाई होता है, तो मतलब इतना पॉसिबल नहीं होता है कि आप कंसिस्टेंटली आप 20 प्लस 30 प्लस गोल्स स्कोर कर सको, until and unless of course you are रोनाल्डो और एनी अदर प्लेयर। तो उसके अलावा नॉट, अरे whatever मैं सलाह, वैसा नहीं बोल रहा कि मतलब, वैसा नहीं बोला कि साला साला, मैं बोला कि जितने चांसेस अगर साला मिस करता ना, अगर वो मिस ना करे तो 35-40 गोल तो हर प्लेयर मैं मार सकता हूँ। मैं, बट मैं ऐसा नहीं होता ना, ऐसा होता नहीं है ना कि यार वो मिस ना करे, चांसेस चांसेस तो मिस मैं होते मैं हैं। मैं मिस हो अग्री जाता मैं है। मैं अग्री मैं अग्री करता हूँ। मैं सितांशु आपको ऐसे बैक करूंगा कि मैं समझता हूँ फ्रंट थ्री पे ना बहुत लोड है, बहुत प्रेशर है, उसको थोड़ा ईज ऑफ करना चाहिए। कोई प्लेयर हो कि थोड़ा हमें पता हो कि आज माने सलाह कोई एक नहीं चल रहा, जिसको बैठा के, मैं इसको ना टू बी, प्लीज आप लोग मुझसे डिबेट जरूर करें इस पे कि ओरिगी सही है, अच्छा है, एक लेजेंडरी स्टेटस हमने दिया इसको, लेकिन देखिए वो 10 गोल भी आपको सीजन में गारंटी नहीं कर सकता। गॉड फॉरबिड आपके कल कोई इंजर्ड हो गया ना, तो ही हैज पोटेंशियल, कर सकता है। क्लॉप ने ऑब्वियसली कुछ देखा होगा उसमें, जो लोग कहते हैं ना कि जो क्लॉप ने चीजें फील्ड पे देखी है ना, हमने नहीं देखी है, जो ट्रेनिंग में आप देखते हैं ना, आपको पता है इसके अंदर वो पोटेंशियल है, वो कभी भी पिच पे आ सकता है, सही है। लेकिन ये है कि कुछ तो हमें ईज करना होगा, मतलब वी नीड समवन के टू ईज द लोड ऑन प्लेयर्स। एंड ऊपर से विनाल्डम का भी जाने का एक रूमर आ रहा है, जिसपे आई थिंक एक क्वेश्चन आया है, प्लीज। Yeah, I know these are speculation and rumors for the moment, but we need your thoughts on this as well. तो क्या कहेंगे आप? 30-35 मिलियन वैल्यूएशन है, 29-30 साल के प्लेयर हैं, इंजरी प्रोन भी हैं, थोड़े बाइंड में खेलते हैं, क्या बोलेंगे आप? या जो देखो मतलब bringing Thiago Alcantara from Bayern Munich at the age of 29 with a history of medical injuries, 35 हम्म, million, he isn't a good deal. Like if you talk in terms of finances and हम्म, financial aspect से, but अगर उसके playing value से देखो, तो he's a very good player. He can play box to box midfielder and give you the same kind of creativity what Coutinho was offering in the midfield. तो हम्म, उसके पॉइंट से तो सही है, बट अब क्वालिटी वाइज वो बहुत अच्छा प्लेयर है, बट वो फिटनेस वाइज इतना अच्छा प्लेयर नहीं है। तो हम्म, और 35 million इज अ लॉट एज per me as a Liverpool fan and someone who knows how FSG have functioned in 35 million, और मेरे को तो कभी नहीं लगता है कि 35 million FSG देगी एक 29 ईयर ओल्ड प्लेयर के लिए। बिल्कुल, वो अपने डेटा एनालिसिस भी बहुत करते हैं। सितांशु आप क्या कहेंगे इस पे? सेम गोज फॉर मी, आई थिंक थियागो अल्कैंटारा बहुत इंजरी प्रोन है वो, मतलब कितना इंजर्ड रहता है। ही लाइक आई गेस ललाना टाइप। आई इस साल सीजन में उसने ज्यादा मैचेस नहीं खेले, बट
We need someone in midfield. We need someone, a versatile player. So there was this someone else. Then Thiago Alcantara. If Thiago Alcantara comes, it's good. But if not, then it's okay. We will get someone else. So, but the rumors I'm hearing and from Twitter now, I think it's a done deal. People are saying that Mm-hmm. it's a done deal. सही सही चले लेट्स सी ऑन दैट तो इनफ ऑन द ट्रांसफर्स एंड लिवरपूल मैं थोड़ा डाइवर्ट करूंगा थोड़ा ट्विस्ट देते हैं हम इस पे आपके हम देखते हैं इफ आई थिंक आई हैव अनदर क्वेश्चन एक मिनट व्हाट इज दिस सेबल्ड मैन तो यहाँ पे कुछ लोग हैं दे डिसएग्री दे फील के 39 games per season. There are some people who disagree. They think Alcantara is injury prone. But I want to change a bit and want to talk about your country, football in India. तो I know ये शायद कुछ के लिए मुश्किल है कहना लेकिन पाकिस्तान में भी कोई इतने अच्छे हालात नहीं है लेकिन काफी मैं आपको एक बैकग्राउंड देता हूँ why I'm talking about this. एंड ISL का सितांशु मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ मैं क्यों उस पर आ रहा था हमारे यहाँ लेटेस्ट आ रही है कि वी शुड स्टार्ट अ फ्रेंचाइज मॉडल फुटबॉल जैसे आपके क्रिकेट में IPL होता है हमारे यहाँ PSL हो रहा है सही है यहाँ पे एक डिबेट ये आ रहा है कि ये जो क्रिकेट में जो चीज होती है ना ये फुटबॉल के लिए अप्लाई नहीं हो सकती आपका AFC के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें आपके प्रॉपर लीग सिस्टम के जो टीम्स होती हैं दे क्वालिफाई फॉर इट फ्रेंचाइज की टीम्स होती हैं कमर्शियल के लिए पैसा बनाने के लिए शॉर्ट टर्म सक्सेस है नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म तो मुझे बताएं इंडिया ने जो ISL किया डेल पियरो आया और काफी मतलब प्लेयर्स आए थे वहां पे खेलने डिएगो फोरलैंड एंड देयर वर लॉट ऑफ प्लेयर्स तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा है हैज इट इम्प्रूव्ड फुटबॉल इन इंडिया कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू भी लोगों का इंटरेस्ट स्टार स्पोर्ट्स अपने ESPN ये लोग कर रहे थे लेकिन इंडियन फुटबॉल के अपने क्या हालात हैं आर पीपल फॉलोइंग द नेशनल टीम आई नो यूरोपियन का पैशन तो एक अलग लेवल पे लेकिन थोड़ा मुझे बताएं इंडियन फुटबॉल के क्या हो रहा है आजकल If you have asked me this question, आप बोलिए बारिश बोलिए नहीं you go ahead ना I'll speak after you. If you have asked me this question, I think a year back, so I would have said completely against ISL and all the policies of FSDF. But they have been improving now because the player they brought in and the system in which they were running in 2014 when they started is now a different. They are now working on a grassroots level. They have a baby league now for 9 to 8 years that run all over India. And yes, it's a franchise league, but we should not forget that MLS, Major League Soccer, is also a franchise league, and they have two parallel league in America. So, but yeah, we need to give ISL some time to build the thing from the grassroots, from the base. And yes, yeah, there has been development, but those development count to none if if there is no work on grassroots level. ISL इसलिए लोग फेवर करते थे कि ISL में होती थी अंडर 21 रिजर्व टीम होती थी फिर उनके ग्रासरूट पे काम होते थे उनकी अपनी एकेडमी होती थी ISL में ऐसा नहीं है देयर फ्रेंचाइज क्लब देयर फ्रेंचाइज टीम जो प्लेयर्स को लोन पे उठाती थी नाउ आई कैन सी द थिंग्स आर बीइंग चेंज अच्छे जब आप क्वालिटी प्लेयर के साथ खेलते हैं तो वो असर करता है बट जब स्टार्टिंग में ISL आया था तो उसमें यंग प्लेयर्स नहीं थे बट नाउ वी कैन सी यंग प्लेयर्स प्लेइंग फॉर देयर क्लब now they have a B team a reserve team and they are working on a grassroots level and soon we will see their own academies so yeah मतलब थोड़ा टाइम देना पड़ेगा and we have a wonderful coach now Igor Stimac so we all know him from 1998 World Cup trophy bronze medalist so now he's trying to inject a new philosophy that is controlling the game and passing so yeah, we have been playing under Stephen Constantine for a really long time, and we were still following that old English model football, dodging over the midfield and long balls from the defense. Now things are being changed, but we need to give Igor some time for at least 3 to 4 years to put his philosophy in the team. And one thing जो अच्छा कर रहे हैं आइगो स्टैमिक वो कर रहे हैं कि उनकी जो फिलोसफी है वही टीम वही फिलोसफी वो उसी टाइप की गेम हमारे जूनियर्स खेलते हैं अंडर 21 हमारे कप्स है अंडर 17 अंडर 15 they follow the same philosophy so it's a good thing when they develop they will be a good passer of the ball they will be a good controller in the midfield
So yeah, Mm-hmm. but we need to game, and coming to the fan culture, and the fan culture is improving a lot, man, improving a lot. There's a group called Blue Pilgrims. So I'm also a part of that group. So we travel all across over India whenever matches happens in India, and we have a traveling supporters group also. जो बाहर में हमारे इंडियंस रहते हैं ना, फिर उनका एक ग्रुप है. एंड वी हैव मंजापाड़ा एंड मरीनर्स फॉर मुंबई सिटी एसपी. फैन कल्चर डेवलप हो रहा है. यूरोप जैसा अभी बनने में टाइम लगेगा, बट या इट्स गुड. हम लोग टीफोज बनाते हैं, बैनर्स बनाते हैं. वी हैव चैंट सिमिलर टू सम यूरोपियन चैंट. वी हैव ओन चैंट इन हिंदी, सम इन मलयालम, some in Marathi. Mm-hmm. So yeah, fan culture is growing. People are coming, and Mm-hmm. Indian football is being promoted. अगर बस हम ISL की बात करें ना कि ISL से डेवलप नहीं, बट one thing ISL did good, that he promoted football in villages in India. Mm-hmm. Right now I'm sitting in village. 3-4 साल पहले इधर बस क्रिकेट ही खेलते थे, बट नाउ आई कैन सी सम प्लेयर्स, सम लिटिल बॉयज, दे आर विद फुटबॉल. सो या, this has been changed because ISL was being telecast on 18 channels, and that is huge. Mm-hmm. Regional channels, from regional channels to, and in 5 languages they have been broadcasting it for 6 years now. And Mm-hmm. yeah, we will see some proper league, but yeah, there is a huge debate for in between ISL and I League. कौन सी league major league है, कौन सी league वो relegation रहेगी, but it's a controversial issue, and everyone has different opinion on it. So yeah, Mm-hmm. I think I should leave it to the authority to decide which league should favor, which league should be a major one. But yeah, Mm-hmm. right now things are bit good, and we are hosting an women under 17 World Cup too soon. Women World Cup too by 2018 28. I guess 48. so. We are waiting for बिल्कुल. it. तो Yeah. we have a question from Liverpool fan Pakistan. Do you think India 2034 तक कुछ वर्ल्ड कप में आ सकता है? एशिया कप में you guys impressed? आप लोगों का मैच था थाईलैंड से. I have 2 Thai friends who misses Sundays को फुटबॉल खेलते हैं. मैं उनके घर गया था. मैंने बोला थाईलैंड तो इंडिया को हरा देगा, not because of the Pakistan thing, because Thailand has players who play in the J League. 5-6 उनके प्लेयर्स हैं जो Yeah, yeah. जापान में खेल रहे हैं, and you know फुटबॉल स्काई रॉकेट होगी आजकल वहां पे. तो and I believe इंडिया ने उनको हराया था. They had a chance to qualify ahead. तो 4-1. क्या 4-1, तो मतलब हाँ, ये क्या समझते हैं आप? मतलब एशिया कप आई थिंक 2011 में भी खेला था, if I remember correctly, और अभी 2019 Yeah. वाला खेला है. तो do you think We have- 2034 is realistically speaking 2034 तक शायद एटलीस्ट क्वालिफायर्स में आ सकते हैं आप लोग? क्या आप ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ खेल रहे हैं, if not the World Cup itself? I think we should not focus on World Cup right now, but I think we should focus on competing with Asian teams first. और जैसे लास्ट ईयर की बात हुई एशियन चैंपियनशिप की, उसमें we played really good. The 4-1 win over Thailand, but we lost 2-0 to UAE. But we played really good we played. And the last game जो हमारा हुआ, इसके बाद को याद नहीं आ रहा, but we gave a last minute penalty. बहरीन से था शायद आप. Bahrain. Yeah, we played last game with Bahrain, and had it been a draw game, we would have been qualified for knockout stage. But yeah, we gave up a last minute penalty, thanks to that guy defender. कोई बात So नहीं, yeah, हो जाता but है, yeah, हो things जाता है. are going well. I think we should not be concerning about World Cup right now. Competing with top in Asian countries should be our priorities. At least then World Cup should be a realistic target. सही. वारिस, आप क्या कहेंगे? What have been the Yeah, that's problems it. associated with Indian football? क्या लगता है आपको? मतलब आई नो शायद आप इतना स्ट्रॉन्चली फॉलो ना करते हो जितना यूरोपियन लिवरपूल को करते हो. सेम पाकिस्तान में भी यही चीज है, लेकिन इंडिया इज अ बिट अहेड अगर हम फुटबॉल की भी बात करें. तो प्रॉब्लम्स क्या रहे हैं ये वहां पे? मतलब बेसिक्स ही आप बताएं. इफ यू वांट कि आप यू कैन अवॉइड पॉलिटिक्स इन द कंट्रोवर्शियल साइड, बट ऊपर से आप थोड़ा ब्रीफली बताएं कि क्यों such a big country. I mean, you guys played in the 50s and 60s where Pakistani players were also playing for Mohun Bagan, East Bengal. पॉलिटिकल मसले हमारे प्लेयर्स अब नहीं आते, बट यू नो हम बचपन से वो बाईचुंग भुटिया का नाम सुना, सुनील छेत्री का नाम आया, 2-3 और भी नाम है. तो व्हाई इंडियन फुटबॉल हैजंट बीन एबल टू टेक ऑफ एंड रीच दोस हाइट्स? मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग बस है, इम्प्रूव हुआ है. क्रिकेट की भी अगर बात करें कि आई एम सॉरी मैं क्रिकेट को बीच में ला रहा हूँ,
राहुल द्रविड़ ने बोला था कि हम जब इंग्लैंड जाते थे 90s में, मैं बैंगलोर आता था तो फैसिलिटीज में जमीन आसमान का फर्क था। आप एटलीस्ट क्रिकेट में वी मीट दो स्टैंडर्ड समवॉट, काफी हद तक। फुटबॉल में आई एम श्योर के वैसा नहीं होगा। तो वेयर डू यू सी द प्रॉब्लम्स, कौन से प्रॉब्लम्स अभी भी एड्रेस करने हैं और कौन से प्रॉब्लम्स की वजह से इंडियन फुटबॉल डिस्पाइट सच अ बिग पॉपुलेशन टेक ऑफ नहीं कर सकी? यार जैसे लाइक आई कम फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली में ना बहुत ही लो और मतलब लो वाइब्स होती हैं किसी भी चीज के लिए। पीपल आर लाइक वेरी रिलैक्स, वेरी लेट बैक, सिर्फ अपना काम से काम मतलब रखना है, ठीक है। मतलब दिल्ली में कोई भी टीम आ जाए, मतलब चाहे वो क्रिकेट हो, क्रिकेट में भी हमारी आईपीएल में भी हमारी टीम बहुत अच्छी नहीं खेलती है, हालांकि स्टेडियम पूरा भरा रहता है, ठीक है। स्टेडियम पूरा भरा रहता है। फिर उसके बाद में आईएसएल में आ जाओ यार, मतलब दिल्ली डायनामोज ने सबसे पहले हमारे पास कौन सा प्लेयर आया था सितांशु, शायद वी साइन एलेजेंड्रो डेल पियरो। डेल पियरो जितना बड़ा नाम है, शायद हम सारे लोग बचपन में डेल पियरो को ही एडमायर करते हुए बड़े हुए हैं यार। मतलब 2000 में सीइंग हिम एट जुवेंटस स्कोरिंग गोल्स। फिर उसके बाद में दिल्ली में आपका आया, तो दिल्ली में हमारा ये आया आपका। फिर अगले साल हमने रीसे को साइन किया, बड़े बड़े प्लेयर्स आए। बट एक हमारी सिटी में ही ना, मतलब हमारी सिटी की वाइब्स नहीं है फुटबॉल वाली। और एज एन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको पता ही है यार, आपके चाहे आपकी साइड हो या हमारी साइड हो, क्रिकेट तो फिर भाई का मजा ही कुछ और होता है, सब कुछ करना है उसमें। तो सही बात है। मेरी सिटी में तो खैर लोगों की वजह से फुटबॉल का कल्चर नहीं हो पाता है। हालांकि मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो कोचेस हैं, जिन्होंने लिवरपूल से ट्रेनिंग ली है और अब वो कोच ट्रेन करते हैं। तो ये वाला सीन हो गया दिल्ली में। इसके अलावा जो मेजर सीन आता है, इंडिया मतलब इतनी बड़ी कंट्री है कि यार आपके तो मतलब पता नहीं, मेरे को लगता है आप लोगों से तो हम लोग कम से कम 10 टाइम्स बड़े हैं। तो हमारे यहाँ पे डेमोग्राफिकली वाइज फुटबॉल का सेग्रीगेशन है। मतलब अगर आप साउथ इंडिया जाओगे, गोवा जाओगे, वहां पे हर बच्चा फुटबॉल खेलता दिखेगा आपको। मतलब थोड़ा हो सकता है क्रिकेट 60% हो, फुटबॉल 100% हो। हर गली नुक्कड़ में आपको बच्चे फुटबॉल खेलते दिखेंगे। केरला में भी सेम सीन है, कलकत्ता में भी सेम, मतलब हाँ नॉर्थ ईस्ट में भी सेम सीन है। तो ये मतलब जो हमारे बॉर्डर वाले एरिया है ना, मतलब नीचे वाले जो मेन लैंड का पार्ट नहीं है, तो इन सब जगहों पे तो इन सब जगहों पे तो बड़ा अच्छा कल्चर है फुटबॉल का। और नॉर्थ में तो यार, नॉर्थ में तो एक लोगों का माइंडसेट है कि कभी फुटबॉल को खेले ही नहीं गया है उस लेवल पे। यार हमारे यहाँ पर तो इतना, दिल्ली में तो मतलब मैं क्या बोलूं, इतना एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि अंबेडकर स्टेडियम जैसे जो मतलब इतने आइकॉनिक स्टेडियम है इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री में, वहाँ फुटबॉल ना खेल के लिए यार रामलीला होती है, पॉलिटिकल रैलीज होती हैं। तो और क्या बताऊं मैं यार। समझ गया मैं समझ, आई कैन रिलेट टू सम एक्सटेंड। कुछ हद तक हम कर सकते हैं इसको रिलेट कर सकते हैं। सही। तो कैसे इम्प्रूव होगा? अब चले दिल्ली एक शहर की बात भी सही है, वहां से शायद कोई ना समझ आए, लेकिन केरला है, आई थिंक कोचिन एक जगह है, वहां पे बड़ा वो फुटबॉल स्टेडियम को एक क्रिकेट स्टेडियम बनाते हैं। जब पाकिस्तान गया था, वो कमेंट्री में सुना है कि यूजुअली जिस किस्म की फ्लड लाइट्स लगी हुई थी, वो कहते हैं फुटबॉल स्टेडियम ही है, साउथ में खेलते हैं यहाँ पे। इन जगहों पे फिर क्या लगता है, अभी है फ्यूचर बने कुछ टाइम बाद कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी मजीद? द स्टेडियम जिसके बारे में आप बात करना, वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है कोचीन में। तो फिर कोचीन और दो स्टेडियम है जो अब वो प्रॉपर फुटबॉल स्टेडियम हो चुका है। वो जो त्रिवेंद्रम में है, दे मेड अ न्यू स्टेडियम था, क्रिकेट स्टेडियम। वो जो कोचिंग वाला था ना, उसको अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए रेडी कर रहे थे वो। नाउ इट्स अ प्रॉपर फुटबॉल स्टेडियम विद देखो ग्रास मास्टर प्लांटेड ऑन इट। तो यार मैं एक बात बोलते ना कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट वी नेवर प्रोड्यूस गुड प्लेयर्स। जो कुछ गुड प्लेयर्स थे, दे केम बाय देमसेल्फ ना। बाइचुंग भूटिया वेंट टू प्ले इन Derby. I think it's Derby ना, Derby or Bury, Derby or Bury. And Sunil Chhetri went to play in Kansas City and in Portugal second division. तो यार जो भी प्ले हुए वो खुद से हुए, but we didn't produce good players. Now इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टेडियम से और अच्छे हमारे पास ट्रेनिंग, वो भी टाटा फुटबॉल एकेडमी है, तो विथ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है। अभी ला लीगा की एकेडमी खुली है बार्सिलोना की, और बार्सिलोना से कोचेज आते हैं। अर्लियर वी हैड अ लिवरपूल एकेडमी इन पुणे, तो जहाँ से हमारे
Lalen Juala or Jerry, they went to Melwood Foot for training. Yeah, but we never Nice, produced good players. We had infrastructure. nice. We never produced good players. So producing good players should be a priority now, because in Africa when under 17 World Cup जब हुई थी, तो घाना के प्लेयर्स हम्म, आए थे, ठीक है, तो घाना के प्लेयर्स तो उन्होंने बोला ना कि प्रेस में कि हमने बहुत सुना है इंडिया के बारे में, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन आपके पास हम्म, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है घाना में, वी आर स्टिल प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हम्म, घाना पे। और तो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी नहीं है, हमारे पास अच्छा एक डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए, लाइक जर्मनी हैड in बिल्कुल। 1990s, they are still following the same path. So we need a good development program, we need a good मैं एक बात काटूंगा, डू यू थिंक फॉरेन कोचेस सोल्यूशन है? हमारे मुल्क में हम फॉरेन कोचेस लाएं, उनको छोड़ दे, बिकॉज फॉरेन कोचेस भी हर दफा चीज कल्चर डिफरेंस की वजह से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बट डू यू थिंक वही फिलहाल शॉर्ट टर्म सोल्यूशन फॉरेन कोचेस लाने का है? foreign coaches are compulsory. Not compulsory, but foreign coaches are important, because जो यूरोपियन कोचेस होते हैं ना, वो टेक्निकली बहुत ब्रिलियंट होते हैं, और वी नीड मोर टैक्टिकल इन्फ्लुएंस्ड कोचेज, जो टैक्टिक्स पे ध्यान दे, जो प्लेयर्स की पोजीशन पे ध्यान दे, जो मेंटालिटी, हमारे फिजिकल प्लेयर्स हमारे पास भी है, द प्लेयर्स फ्रॉम हरियाणा, पंजाब एंड द प्लेयर्स फ्रॉम केरला, दे आर फिजिकली गुड, बट हमें टैक्टिकल प्लेयर चाहिए, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई जापान एंड और जापान, कोरिया और अमेरिकन प्लेयर्स थोड़े स्ट्रगल करते हैं व्हेन दे कम टू यूरोप और व्हेन दे प्ले इन वर्ल्ड कप। वो अच्छे होते हैं, बट टैक्टिकली सफर करते हैं, टैक्टिकली टेक्निकली। तो या वी नीड फॉरेन कोचेस टू सम एक्सटेंट, जो हमारा ग्रास रूट डेवलपमेंट करने में वो सही मदद करे थोड़ा एक, बिकॉज फुटबॉल बहुत टैक्टिकल होती जा रही है, टैक्टिकल जैसा स्पेन खेलती थी, दे वॉन 2008, 10, 12, so they were technically so brilliant, क्या टीम थी यार। तो वी नीड, जबरदस्त, बिल्कुल ऐसी थी। शॉर्ट मैं इसको रखूंगा, ऑब्वियसली वी आर एक्सीडिंग टाइम, बट आप लोगों का भी टाइम काफी लंबा हो रहा है। बट ये कि वुमेन्स की आपने बात की, वुमेन्स वर्ल्ड कप होस्ट की बात हो रही है, डू यू थिंक दैट विल हेल्प वुमेन्स स्पोर्ट्स डेवलप इन इंडिया? we have a women league now, we have women league right now with 8 teams, बट जैसा इन्वेस्टमेंट मेन फुटबॉल पे होता है ना, वैसा वुमेन्स पे नहीं होता, एंड या वुमेन फुटबॉल हो रहा है, थोड़ा एक्सपोजर बढ़ेगा, बट सी लेट्स सी, मेन फुटबॉल ग्रो होता है तो वुमेन फुटबॉल ऑटोमेटिक ग्रो होगा, दे आर बोथ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, एंड हाउ अंडर 17 वर्ल्ड कप हेल्प, अंडर 17 हेल्प पीपल इन इंडिया, किड्स इन इंडिया टू take up with football. I guess women football will help us, and we have some good women players. 14-15 साल की जो बच्चियां क्या खेलती है यार, मैंने अभी देखा लीग चल रही थी, इतना ब्रिलियंट प्लेयर, मतलब मैंने 20 साल की लड़कियां ऐसी नहीं खेलती जैसे 14-15 साल की लड़के खेलती, एंड विराट कोहली स्कोर्ड 97% इन 12 बोर्ड ऑल्सो। तो यार कि अभी देखेंगे, अभी मजा आएगा। एंड हियर अनदर क्वेश्चन, या तो ये है कि मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर हम जैसे बाहर होता है यूरोपियन मॉडल अप्लाई करें क्लब्स के ओनरशिप में, कैन दैट हेल्प डेवलप अ लीग इन अ प्रॉपर वे? आई थिंक सितांशु या गो अहेड, मैं वही कह रहा हूँ कि इसका आंसर तो सितांशु दे सकता है, वो फुटबॉल को। वारिस आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा हुआ है मैंने इसके बाद। the first thing, जी सितांशु जवाब दें आप। The first thing first, now we need a proper 9-month league, and that league should run with European model. पहले तो हमें नॉन लीग करने की, and we need around 20 players, a good मतलब I was reading some articles now, and the articles say that to run a good football industry, a good football culture now, you at least need a proper 60 clubs. Proper 60 clubs is first division, second division, third division. You need at least 60 clubs. After that, you can think about, and the question is, if India changes ownership model from private to private partnership, it changes more public. क्या इसके क्या बोलूं, मेरे को होता knowledge. So first of all, we need a proper league system, जहाँ पे एक लीग हो, एक वो हो, मॉडल फॉलो करते हैं, उनके जूनियर्स हो। उसके बाद जैसे अभी जो फ्रेंचाइजी लीग है ना, जो फ्रेंचाइजी क्लब्स आर नाउ डूइंग दिस, दे हैव अ बेबी टीम, अपनी रिलायंस फाउंडेशन काम कर रही है, तो
I think we are on a right path, but it will take some year. It will take really some time. It'll take time. to Things take time. सितांशु, ये आपके लिए मेरी तरह क्वेश्चन है. ये कल्चर बढ़ रहा है पाकिस्तान इंडिया में. इंडिया इज अहेड. तो सपोर्टर्स क्लब का, चाहे वो यूनाइटेड हो, लिवरपूल हो, रियल मैड्रिड एंड चेल्सी, सिटी, XYZ. How is the Liverpool community in India? मतलब how many fans you've been supporting for a very long time? आप शायद उस वक्त के फैन थे जब गिनती के बहुत कम फैंस थे. अब 17 years ahead, मतलब what is the status of Liverpool in India right now? बारिश भाई अच्छा बताएंगे. बारिश आपके लिए सवाल है, बचा के रखा था. मतलब मैंने मैं दिल्ली कॉप के बहुत ही शुरू से जा रहा हूँ स्क्रीनिंग में. मैं उस टाइम से दिल्ली कॉप की स्क्रीनिंग में जा रहा हूँ जब हार्डली फाउंडर्स होते थे और 7-8 लोग होते थे. तो उन लोगों ने बस ऐसे ही उनका एक आइडिया था जो उन्होंने ऑर्कुट पे कम्युनिटी पे शेयर किया. 4 फैन उनके मिले, फिर उन्होंने इस आइडिया को थोड़ा आगे ले गए और उन्होंने क्या किया, दिल्ली कॉप को दे केम अप विद दिल्ली कॉप. तो धीरे धीरे कम्युनिटी हमारी बढ़ी. हम लोग शुरू में हार्डली 10 लोग होते थे, फिर 20 लोग हुए. ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2007 की, 8 की. फिर 2010 में थोड़ा सा बुरा टाइम था तो 40-50 फैंस आने लगे फेसबुक वगैरह से होके. फिर जो सबसे बड़ा मैंने अपने दिल्ली कॉप में चेंज देखा, दैट वाज लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी 3-2, जिसमें आपका मतलब जो हमारा 2013-14 वाला गेम था 12 अप्रैल का. तो उसमें मतलब हमारी स्क्रीनिंग जो थी, अंडरडॉग्स करके एक बार है हमारे यहाँ पे, स्पोर्ट्स बार है, और हमारे पास नंबर था 700 लोग. 700 लोग अंडर वन रूफ इज मैसिव. तो मतलब एंड दैट वाज लाइक हमारी जो ग्रोथ थी, ये ग्रोथ हमारी 5 से 6 साल की ग्रोथ. और मुझे लगता है कि अभी तक दिल्ली कॉप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग, मतलब मतलब अपार्ट फ्रॉम बिग कप फाइनल्स, ये हमारी सबसे बड़ी स्क्रीनिंग थी. 700-800 लोगों 5 साल में. मैसिव सर्च, मैसिव ग्रोथ इन लिवरपूल्स. और ऐसा नहीं है कि हम लोग को जीत रहे थे, मतलब हम लोग मैन यूनाइटेड की तरह नहीं थे. हम लोग बार्सिलोना की तरीके से नहीं है कि यार चलो आज यूसीएल जीत गए, कल ला लीगा जीत गए, फिर कल किंग कप भी जीत गए. ऐसा कुछ नहीं है. बस लिवरपूल वाज ग्रोइंग. मतलब एक लोगों का फिर भी अफेक्शन था लिवरपूल के लिए. मतलब मैं उस टाइम पे देखता था कि जो 15 साल पुराने फैंस हैं वो भी आते थे, जो कहते थे अरे भैया हमें तो बड़ी अच्छी लगती है लिवरपूल, एंड वी स्टार्टेड सपोर्टिंग इन 2010 ओनली. तो भाई जो 2010 में सपोर्ट करके 2011 या 12 में स्क्रीनिंग पे आ रहा है ना, मतलब मेरा उसको सलाम. मतलब इट टेक्स गट टू सी प्लेयर्स लाइक पॉल कंचेस्की, क्रिस्टियन पोल्सन, मिलान जोवानोविच, डैनी वार्ड. मैं किसी पे स्टिक नहीं ले रहा हूँ, बट सही है. फिर भी आपका पॉइंट सही है. वेल नोटेड. कंटिन्यू. तो उसके बाद में मतलब फिर जब योर्गन क्लॉप आया, तब तो फिर मतलब हमारे नंबर्स बहुत ही बढ़ गए. मतलब हमने जो हमारी दिल्ली में स्क्रीनिंग थी, अभी हमने दिल्ली कॉप ने स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज कराई, और कुछ नहीं हमारे पास, मतलब जो इनिशियल रिस्पांस था वो इतना बड़ा था कि इतने ज्यादा लोग नंबर्स में थे कि हमने ओरिजिनल वेन्यू को चेंज किया और एंड वी मूव टू अ लार्जर वेन्यू, जो दिल्ली में भी हुआ, मुंबई में भी हुआ, और केरला में तो इतना बड़ा था कि मतलब केरला वालों ने तो किसी 5 स्टार होटल में दे टुक अ एंटायर बैंक्वेट हॉल. तो मतलब आराम से उनके पास भी 1,500-2 हजार लोग थे. और फिर उसके अलावा मतलब आप ऐसे देखिए कि फैंस को क्लब लाइक लिवरपूल एक्नॉलेज करता है. मतलब मेरी जिंदगी में पहला जो प्लेयर था जो मैंने देखा, इट वाज फिल नील 2007 में 2007 में दिल्ली में ही वाज कंडक्टिंग फुटबॉल क्लिनिक ऑन 7 फरवरी. तो उस टाइम पे भी वो जर्सी बांट रहे थे. मैं 12th में होता था. मेरे स्कूल से हार्डली 4-5 किलोमीटर की दूरी पे डीपीएस आरकेपुरम होता है, तो मैं वहां पे गया. फिर उसके बाद में 2010 या 11 में लिवरपूल दोबारा आया. स्टीव मैकमैन जो हमारा फॉर्मर लिवरपूल लेजेंड है, उन्होंने अपनी एकेडमी खोली यहाँ नोएडा में, दिल्ली एनसीआर में ही. उस टाइम पे आपका इयान रश भी उनके साथ में आए. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई गॉट द चांस टू मीट इयान रश. और जब लेजेंड्स आते हैं तो थोड़ी भीड़ भी बढ़ती है, लोगों को मजा भी आता है कि यार चलो क्लब इज टेकिंग इंटरेस्ट इन इट. फिर उसके बाद में लिवरपूल ने टाई अप किया जोलो के साथ में. जोलो मोबाइल्स होते थे, आपको याद होगा शायद 2014 में अराउंड 7 जनवरी
नहीं, 14 में 2014 में वी टाइड अप विद जोलो मोबाइल्स। तो उस टाइम पे जोलो मोबाइल्स के लिए आपका रॉबी फाउलर आया, इयन रश आया हमारे दिल्ली में। 14 जनवरी की बात है, शायद 7 या 14 की। फिर उसके बाद में दे केम अगेन विद उसके बाद में बीच बीच में दिल्ली में, मैंने तो ये आपको दिल्ली का बताया, बट इसके अलावा अगर आप मुंबई जाते हो तो मुंबई में लिवरपूल अलोंग विद स्टैंडर्ड चार्टेड, उन्होंने गैरी मैकलिस्टर को, सॉरी, आपका जेसन मैकेटियर को भेजा, स्टीव मैकमैनामैन को भेजा, इयन रश को भेजा। और इयन रश, ट्रस्ट मी, इयन रश हमारी लिवरपूल मुंबई सपोर्टर्स क्लब की स्क्रीनिंग से इतना खुश था, मतलब उन्होंने पता है क्या कहा, मतलब मैं उस स्क्रीनिंग पे नहीं था, बट मेरे मुंबई में काफी दोस्त हैं जो एलएमएससी को रन करते हैं। उन्होंने मेरे को यही कहा कि इयन रश वाज सो हैप्पी विद द स्क्रीनिंग। तो उसने उनको कहा कि यार ऐसी स्क्रीनिंग हमारे लिवरपूल में भी नहीं होती है पब्स में। एंड एंड तो ये बड़ी, मतलब बहुत ही शानदार है। मतलब इससे बढ़िया तो कॉम्प्लीमेंट क्या ही हो सकता है आपके लिए, कि अगर कोई लेजेंड लाइक इयन रश सेज इट। मतलब जो मैंने सुना है, मैंने आपको वही बताया है। उसके अलावा नहीं होगा, there's no doubt। I mean, पैशन, जब एशियन पैशन जो है ना, उसकी बात ही अलग है। मतलब मैं जब इंग्लैंड में था, गोरे से एक बार, आपको पता है हर किस्म के लोग हैं, कहते हैं यार आपको क्या पता फुटबॉल। मैंने कहा भाई 2-2 बजे तक जागते हैं हम लोग ऑफिस के दिनों में, आप लोग तो सो जाते हो 10 बजे मैच देख के। हमारा तो पैशन ही अलग होता है। हम लोग तो यार, फिर उसके बाद में लिवरपूल ने जेमी कैरेगर को भेजा पुणे में डीएसके एकेडमी खोलने के लिए। तो फिर प्रीमियर लीग भी इवेंट्स कराती है जिसमें वो लेजेंड भेजते हैं। हमारे यहाँ पे जॉन बार्न्स आया बेंगलुरु में, रॉबी फाउलर आया था प्रीमियर लीग इवेंट के लिए 2014 में एलएफसी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। तो इस तरीके से मतलब यार प्रीमियर लीग बहुत एफर्ट्स करती है। प्रीमियर लीग के मॉडल को ही ला लीगा ने कॉपी किया। ठीक है, ला लीगा ने एल क्लासिको की स्क्रीनिंग्स होती हैं भाई, उन्होंने बड़ी बड़ी स्क्रीनिंग्स लगा दी। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे एक एग्जीबिशन इवेंट एग्जीबिशन ग्राउंड है, एनएसआईसी। तो वहाँ पे यार इजीली, मतलब आपका बड़े से बड़ा म्यूजिक आर्टिस्ट आता है दिल्ली में, तो वो वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। एल क्लासिको था आपका ये 2017 का दिसंबर वाला, शायद 21 या 22 दिसंबर का। तो उसमें यार आराम से मतलब 15-20 हजार लोग स्क्रीनिंग पे थे यार। मतलब कैन यू इमेजिन कितना बड़ा लेवल रखा है। बहुत बड़ा। मतलब स्टेडियम फिल हो जाते हैं यार इतने लोगों में। तो मतलब हमारा क्रिकेट मैच हो जाए तो 15-20 हजार नहीं होते हैं। बिल्कुल, बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के गेम के लिए चले जा रहे हैं लोग। तो वो अलग तरीके का एक्सपीरियंस होता है, मजा आता है लोगों को देखने में। और मैं थोड़ा सा लकी रहता हूँ क्योंकि मेरा वर्क जो है इट अलाउज मी टू ट्रैवल। तो और ये जो इवेंट्स होते हैं ये मेरे घर से हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी है। मतलब मेरा लोकल नेबरहुड है, तो मैं भाई ऐसे ही इवनिंग वॉक पे भी निकलता हूँ तो मेरे को इवेंट अटेंड करने को मिल जाता है। तो ये मतलब यूरोपियन क्लब्स जो हैं वो हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। दे नो यार इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज या कमर्शियल एस्पेक्ट से, एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग कम्स टू कमर्शियल। और यार 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और जो फुटबॉल देखता है, दे ऑल आर इनटू आईटी, दे ऑल आर मिडिल क्लास वर्किंग पीपल इन एमएनसीज। तो इनके पास अच्छा पैसा है खर्चने के लिए, मतलब मर्चेंडाइज खरीदने के लिए, और टाइम है इनके पास, उस तरीके का टेस्ट है। तो इसीलिए भाई जब उनके पास पैसा है तो वो देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। और आपने जैसे अभी हमारे यहाँ पे इवेंट हुआ बडवाइजर प्रीमियर लीग का, मेजर सर है। तो बडवाइजर ने क्या किया, बडवाइजर ने जूम मीटिंग अटेंड की। दे ब्रॉट फेमस कॉमेडियन वॉच सेलिब्रेशन। सही। हाँ, लाइक फेमस कॉमेडियंस ऑफ इंडिया हु आर लिवरपूल फैंस। उसके अलावा उन्होंने यार कल एक मूवी रिलीज की जो हमारा इवेंट था वॉच कॉल का। दे गेव लाइक 1 बियर टू एवरीवन। मतलब आपकी कंट्री में शायद बियर का कोई मीनिंग नहीं होगा, बट पीपल हियर इन इंडिया दे विल लव सिटिंग और फ्री का सबको मजा आता है। तो सही बात। तो इस तरीके से यार कमर्शियल एस्पेक्ट और ये सब इवेंट्स है। और जितनी उनकी पॉपुलेशन है वहां पे यूके में, इतने तो हमारे यहाँ पे यार ऐसे ही रहते हैं एक जगह पे।
तो सही बात है, 140 करोड़ सही की बात है। तो आबादी में वारिस अगर 10 करोड़ what लोग भी फुटबॉल देखने लगे तो उनका हम्म, काम है। Again, what I can understand is when you talk about markets like US, India, Russia, China, तो population भी बहुत है, scope भी ज़्यादा है, and you know I'm very glad to hear and impressed कि Premier League काफी Indian market को serious ले रहा है, मतलब it's not only commercial के साथ साथ थोड़े development भी हमें नजर आ रही है, मतलब screening कराना, giving something back to the fans, which is very important. So guys, thank you so much. You know, I'm sorry मुझे इसको cut short करना होगा because you know it's been a very long session. तो वारिस लाइक यू सेड कि यू नो वी कैन टॉक अबाउट फुटबॉल ऑन एंड ऑन, इसमें तो हम पूरा हफ्ता बात कर सकते हैं, लेकिन ये कि हमारे व्यूअर्स भी थक जाएंगे। एक आखिरी क्वेश्चन है सितांशु, आई वुड लाइक के वारिस को थोड़ा ब्रेक दें, आप बताएं। क्वेश्चन है फ्रॉम जी अहमद के, डू यू थिंक वेयर डू वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर स्क्वाड, व्हाट चेंजेस शुड वी मेक? I think we need backup. We need backup for the current players. If anyone goes down, it will be tough. It will be tough to replace them because अभी कोई लेफ्ट बैक पे इंजर्ड हो तो भगवान ने करे रैंडी रॉबर्ट्स इंजर्ड हो, बट हु विल रिप्लेस हिम? ट्रेंट का जो निको विलियम्स है, बट वी नीड some backup players. We need backup strikers, and we desperately need them because Liverpool's play around 48 to 50 games. If we reach finals for the whole tournament, for all the tournaments, so 50 गेम बहुत है, एक प्लेयर सेम 11 प्लेयर्स खेलते रहे. We need backup, and I think we need attacking midfielders. जब टीम बहुत डीप करती है ना, पार्क द बस मोड में आती है, we need players, somebody like Coutinho to break them down to dribble past defenders. Keita is a good option, but कभी consistent रहता है, कभी inconsistent रहता है. So yeah, इंजरी का भी मसला है केटा का। yes, he is injury prone to. So I will have an attacking midfielders and some backup for left back and striker. Side. And a question from my side, for you both, can we retain the titles? सुनने में तो, देखने में बड़ा मुश्किल लगता है, ये तो इस सीजन भी बड़ा मुश्किल लग रहा था। लास्ट सीजन इतना करीब आके हम हार गए, लीग सिटी जीत गया था, मैंने कहा मैं जब तक मैं जिंदा हूँ शायद मैं लीग जीतती मैं ना देख पाऊँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देख लिया इस साल। लेकिन डू यू थिंक वी कैन रिटेन इट? बिकॉज यार वही बात है, अगेन डर लगता है चेल्सी की स्पेंडिंग, आप देखिए यूनाइटेड, सिटी हैव पावर, सिटी स्पेशली जब वो उससे बच निकला, वो क्या था इनका भी कैश वाला चीज, तो क्या हो सकता है? हाँ, उनका बेस्ट डे था, तो क्या होगा ये? एक और क्वेश्चन भी आ रहा है कि मतलब हम छोटे क्लब से भी प्लेयर उठा सकते हैं। किसी ने यहाँ, अगर आप देख लें, किसी ने यहाँ ये भी लिखा था कि एक मिनट, कोई बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी थे कि एम्बापे को हम ले आए, कुछ करें, वो इंजर्ड हो गया है, मैंने सुना है कल, और काफी ऑप्टिमिस्टिक भी अच्छा वो नजर आ रहा है हमें। एक और आई थिंक आई कांट फाइंड द कमेंट, ये था कि वी कैन बाय फ्रॉम द लोअर लीग्स, फ्रॉम साउथ अमेरिकन लीग्स या फ्रॉम द रेलीगेटेड टीम्स। तो इसको आप सम अप करके एक तो ये बताएं हम क्या करें नेक्स्ट सीजन के लिए, और लास्ट आप लोगों की तरफ से मैसेज टू फैंस, ऑल फैंस, लिवरपूल फैंस इन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो गाइस, Should I go first? जी आप करें सितांशु, आप करें स्टार्ट। So football, for the fans in Pakistan, just keep supporting Liverpool, have passion for them till the end of time. क्या बोलूं मैं, अपन जैसी है उधर भी, तो and also देखते रहे support. Also support your local team and your national team. Yeah, and also support your local team Also because support team. Liverpool is important, but your national team is equally important. So support your local team, visit them. छोटे मोटे टूर्नामेंट भी होते हैं, उधर भी जाने का, मैच बरोबर देखने का अच्छा है वो लोग. We need to separate support our own players to our own football structure, our own football team. So support Liverpool, support your local को vocal. बिल्कुल। और मुझे बताएं, नेक्स्ट सीजन कैन वी रिटेन द टाइटल? वारिस, कैन वी रिटेन द टाइटल? डेफिनेटली विद दिस टीम यस, बट रिटेन तो हम, अगर हम जीत सकते हैं तो रिटेन भी कर सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। हो शायद 7 मैचेस रहते हुए ना जीतें तो 5 मैचेस रहते हुए जीतेंगे, इतना कैलिबर तो है भाई इस टीम में, कोई भी ऐसा प्रूवन प्लेयर नहीं जा रहा है हमारी टीम को छोड़ के। बट ऑब्वियसली यार, अगर आप
मार्केट में हो तो आपको एक दो तो डिसेंट बैटिंग चाहिए। अब आप इसमें चाहे मुझे एफएसजी इन बंदा को या आप मुझे एफएसजी आउट बंदा को, मैं ओनर्स को बिल्कुल नहीं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मैं ओनर्स को सपोर्ट करता हूँ। एंड इन क्लॉप, मतलब those guys know more football than me or Sanshu or you or any XYZ person knows. They are paid for it. They take their football seriously and they excel at what they do. ठीक है, बट एज अ फुटबॉल फैन थोड़ा बहुत तो यार हमें भी पता है, 20-22 साल देखते हुए हो गए हैं, थोड़ा तो हम भी ये कह सकते हैं कि यार द वे जिस तरीके से चेल्सी ने पैसा खर्च किया है अभी मार्केट में, मतलब अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहे हैं यार वो, मतलब मेरे को लगता है शायद वो 150 मिलियन की साइनिंग्स कर ली होंगी उन्होंने अभी तक, या हो जाएंगी बाय द हो जाएंगी। तो हमें एक दो तो बढ़िया प्लेयर ले आओ और फैंस को थोड़ा सा चीयरफुल रखो, वैसे ही जैसे मतलब आप हल्की फुल्की शॉपिंग तो करते रहते हो यार मार्केट और इकोनॉमी को चलाने के लिए। And I would put something here. He signing career level, but we should not forget that Bournemouth and West Ham have spent more than 150 million in their last two transfer windows. But those players didn't work well. So signing players not always turns out how they look like. So yeah, we should sign players. This is Klopp. We didn't sign players in last two or three transfer window, but those players थे अच्छे थे, जो junior players थे, they are really good. Harvey Elliott, Adrian proves to be something really good. कोई उम्मीद नहीं थी, बट 11 मैचेस खेले उसने और ही रिप्लेस एग्री उस कैलिबर का नहीं है, बट ही इज गुड। तो साइनिंग प्लेयर्स नॉट हमेशा वैसा नहीं होता, बट या होप and FSG people question FSG, but FSG has really done well with commercial side of Liverpool. They have expanded stadium, good world class training facilities, a new deal with Nike. Even New Balance were offering a lot more than Nike, but we still went with Nike. We still went with Nike. So yeah, these are some aspects people forget. But yeah, well, as I said it earlier, या आई थिंक नाइकी का ये फायदा उसकी रीच बहुत ज्यादा है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ ना, नाइकी मिल जाएगा, न्यू बैलेंस नहीं मिलता। न्यू बैलेंस के लिए मैं अगर यूएई दुबई जाता हूँ, वहां सबसे करीब मैंने जो न्यू बैलेंस देखा है अपने मुल्क से वो दुबई में देखा था। तो आई थिंक नाइकी के ग्लोबल रीच एक बहुत ज्यादा है। एंड देयर आर ओनली 15 नाइकी न्यू बैलेंस स्टोर इन इंडिया, तो कितना कम है ये, 15 स्टोर पूरे इंडिया में, एंड यू स्टिल डोंट गेट ऑल द मर्चेंडाइज ऑफ लिवरपूल। तो यार एक्सपेंशन वाइज भी नाइकी के मोर देन नाइकी 3000 बहुत नाइस। मतलब मैं अगर अपने घर के बाहर ही निकल जाऊं तो मेरे घर के पास में ही फैक्ट्री आउटलेट भी है, मेरे घर के पास ही नाइकी का ऑल एक्सक्लूसिव 4 मंजिल का शोरूम भी है और मॉल में भी नाइकी का शोरूम है। तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन का तो खेल होता ही है, क्योंकि काफी फैंस होते हैं यार वो सिर्फ जर्सी मतलब न्यू बैलेंस वगैरह से इसलिए नहीं मंगा पाते हैं क्योंकि वो लिवरपूल से आएगी, और लिवरपूल से आएगी तो भाई आपको कस्टम्स भी करना है। एक तो हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं जहाँ पे लोगों की सैलरी ही एवरेज 10,000 रुपए होती है, वो 6,000 रुपए की जर्सी कहाँ से खरीदेगा? 6,000 की जर्सी मंगाने के बाद में यार 3-4 हजार रुपए कस्टम हो जाएगा, तो वो थोड़ा मुश्किल है। बट नाइकी इज नाउ हियर, तो people will be able to like help our club financially in some manner. Okay, guys. I think this is time for me to end the show. It went on very long, unexpectedly. I would love to say thank you so much. आप लोगों ने टाइम निकाला मेरे लिए, मैं तो हुई फारिग वीकेंड्स को, लेकिन आप लोगों ने अपना बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला। My message to everyone is, this is a dream come true to have people from across the border. And sorry, मैं political नहीं बनाना चाहता, but मैं temptation थी कि वही बात है कि we're divided by politics, but united by sports and other common interests. Can be music, can be art, can be anything and everything. सही है। तो वारिस and Sitanshu, thank you so much for coming in. I would love कि आप लोग इंशाल्लाह next time भी मेरे show पे आते रहें, and and all the comments from especially people from India watching, my hello to you, and congratulations, we've done it after 30 years, and we keep on doing this, and we'll support Liverpool no matter what. So YNWA guys, thank you so much. Take care. Congratulations to you also. Thanks for having us here. Thank you. Welcome. Bye.
Namaste.